Yeah. Yes, sir. Yes, ma'am. Okay. Already. Okay. Okay. मैडम ज्वाइन कर चुका हूँ मैं। हाँ. Acha, Good afternoon, yes, sir. yes. Rajiv Chaudhary sir is here. Okay. Okay. Good Just Good afternoon, afternoon, sir. sir. wait for 1 or 2 minutes and then we will start. Okay. नमस्कार सर. Thank you, Rajiv sir, for connecting with us. नमस्कार जी, थैंक यू जी। Good afternoon, sir. Good Good afternoon, sir. afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. आप सभी को गुड आप सभी को गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. afternoon. Good Good afternoon, afternoon, sir. sir. Good afternoon, sir. नमस्कार सर. Namaskar, sir. Matari. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर. Okay, good afternoon. I'm Good afternoon, sir. sir. Fine. Good afternoon, all. Good Yes, good afternoon, all. afternoon. Yes, thank you so much. Good afternoon to you all. Good afternoon, sir. Good afternoon to all, sir. Okay. सर हम स्टार्ट करें सर. जी श्योर श्योर जरूर। Okay, sir. Thank you, sir. Uh, uh, Today's our first session. Expert is Professor Rajiv Chaudhary, sir. Rajiv Chaudhary, sir, is awarded by Best Teacher Educator 2019, National Council of Teachers Education, a statutory body of Government of India. Sir, present designation and responsibility. Sir is working a professor in physical education, PT Ravi Shankar Shukla University, Raipur, Chhattisgarh, from 2012 onward. Sir is a Dean Student Welfare from 2017 onward. Sir is a head School of Study in Law from 2019 onward. Sir is a joint proctor in 2015 onward. Sir, adjunct faculty of Rashtriya Raksha University, a university of national importance and central university under Ministry of Home Affairs, Government of India, Gandhinagar, Gujarat. Uh, Sir is also visiting professor in Jan Delgos University, Poland, visiting professor Trier University of Applied Science, Trier, Germany. Sir, past experience, sir is a former Dean Faculty of Physical Education in 2016 to 2018. Sir is a former head School of Studies in Physical Education 2016 to 2019. Sir is former chairman Central Board of Studies in 2018 to 2019. Sir is former lecturer LNUP Gwalior MP India University under Ministry of Youth Affairs and Sports Government of India. Sir is former assistant professor Banaras Hindu University Varanasi UP India. Sir is former associate NCC officer and TP commander 3rd UP Armed Squad NCC BHU India.
Sir, qualification is MP, MPhil, PhD, PG diploma in yoga meditation, PG diploma in yoga naturopathy, PG diploma in yoga and physiotherapy. Sir is also black belt diploma in judo, second dan, CIS and NET. Sir is received fellowship JRF from MHRD, Government of India, SRF from UGC. Sir received awarded accolade of excellence from Open International University, Complementary Medicine, Sri Lanka in 2009. Sir awarded Professor of the Year consecutively for 2 academic years 2014-15 and 2015-16. Sir received Lifetime Achievement Award from Physical Education Foundation of India, PEFI, in 2019. Sir received honor of fellowship from IMS BHU. Sir, research related experience. Sir is also published 109 research paper. Research project. Sir has completed research project. 4 research project completed. Sir, publication. Sir is publication book published. 17 book published and chapter of books total 30. Sir is visited different country for academic purpose. First is Sri Lanka, Singapore, Poland, and Germany. Sir is delivered a lecture in UGC HRDC more than 500, in international conference more than 50, in national conference more than 100, on an online lecture more than 100. Sir sports achievement sir is received a bronze medal in All India Inter-University Judo Championship. Second, act as a captain of university team in 3 different games: judo, kabaddi, and wrestling. Sir represented All India Inter-University several times for 4 different games: judo, wrestling, kabaddi, weightlifting. Sir, HRDC department and I personally, Vishal Suthar, we all welcome you, sir, for our session. Thank you very much. Thank you. Am I audible? Thank you, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Officials of yes. Yes, sir. Each and every unit associated with this program, officials of this program, coordinator, director, and dear participants. At the very outset, I would like to express my sincere thanks to the organizers, especially to organizing secretary for providing me an opportunity to speak in front of you. I am feeling great pleasure as I have got this opportunity. I am directed by the organizers to speak on the topic recent trends in exercise and training. I will discuss in detail. उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आप हिंदी में सुनना पसंद करेंगे, इंग्लिश में सुनना पसंद करेंगे और इन मिक्स लैंग्वेज या मिश्रित भाषा में सुनना पसंद करेंगे? हिंदी में, हिंदी या इंग्लिश दोनों मिक्स language. मिक्स language. हाँ हिंदी हिंदी Hindi English. हिंदी और Hindi English. I got my answer. समझ गया आपकी बात को पूरी तरह से सर मिक्स लैंग्वेज सुन गया भाई, सुन गया. I will speak in both languages. दोनों भाषाओं में बात करते हैं. अगर कहीं लगे बीच में कि मैं अपनी सामग्री आप तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं, if I am unable to convey my contents in front of you, you may interrupt in between. आप बीच में मुझे कह सकते हैं, रोक सकते हैं, जहां भी आपको लगे ठीक से गाड़ी आके आप बीच में रोक सकते हैं. तो शुरू करते हैं आज की कहानी. Recent trends in exercise and training. Recent trends की बात कर रहे हैं तो I am going to share my presentation. आपने अलाउ किया हुआ मुझे? Yes. Now you me. अभी प्रेजेंट हो रहा है. ठीक. Is it visible on the full screen? पूरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बात करेंगे रिसेंट ट्रेंड्स इन एक्सरसाइज से बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि वी आर फेसिंग कोविड-19 पैंडेमिक, विश्वव्यापी महामारी का सामना कर रहे हैं जिसका नाम है कोविड-19। बिफोर दिस, इससे पहले वी वर फ्री टू डू एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी। इससे पहले हम स्वतंत्र थे, चाहे प्रशिक्षण के क्षेत्र की बात करें, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, खेल के क्षेत्र की बात करें, हम वी वर फ्री। पर अब फ्री नहीं है। नाउ वी आर लिविंग इन ए प्रोटेक्टिव लेयर। अब हम एक प्रोटेक्टिव लेयर में, एक रक्षात्मक कवच में रह रहे हैं। हमारी बाध्यता है, वी हैव टू लिव, अदरवाइज दैट विल लीड टू डिसास्टर्स रिजल्ट्स। कहाँ डॉक्टर तक नहीं, पता नहीं कहाँ तक पहुंचाएंगे हमें, हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो केवल एक सामान्य एक जीवन शैली की बात न करें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल लाइफस्टाइल, द ट्रेनिंग पार्ट इज ऑल्सो अफेक्टेड। जितना भी प्रशिक्षण से संबंधित, खेल से संबंधित भाग है, वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। लेकिन रिसेंट ट्रेंड्स की बात करेंगे कि रिसेंट ट्रेंड्स क्या क्या है। तो प्रस्तुतिकरण को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। आई डिवाइडेड द प्रेजेंटेशन टू डिफरेंट पार्ट्स। पहले बात करेंगे एक्सरसाइज साइंस की, एक्सरसाइज साइंस क्या है। उसके बाद बात करेंगे द कंसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग लोड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन। एक प्रशिक्षण भार की अवधारणा के बारे में बात करेंगे। तीसरा बात करेंगे ट्रेनिंग इफेक्ट, कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग इफेक्ट टेक्स प्लेस, किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं यदि हम प्रशिक्षण सत्र में सहभागिता करते हैं। और चौथे भाग में जो और भी महत्वपूर्ण भाग है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के सिद्धांत, क्योंकि इन सिद्धांतों पर आधारित ही हमें प्रशिक्षण देना है। अगला है मॉडरेशन इन ट्रेनिंग, उसकी बात करेंगे। उसके बाद ओपन विंडो थ्योरी। इस कोविड-19 पैंडेमिक में प्रशिक्षण में सहभागिता करने वाले प्रत्येक व्यक्ति विशेष को ओपन विंडो थ्योरी के बारे में जानना चाहिए। Each and every individual related to sports sciences should have an idea about the open window theory. क्यों बात होगी। 7th पार्ट में some facts about endurance training। endurance training, यदि लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज या मैराथन रनर है या कुछ एंड्योरेंस ट्रेनिंग हम देते हैं, तो हमें कुछ मुद्दों का, कुछ तथ्यों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ट्रेनिंग एंड फीमेल इश्यूज, कुछ महिलाओं संबंधी मुद्दों की बात करेंगे कि महिलाएं अगर ट्रेनिंग करते हैं तो क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, उन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। और अगले भाग में बात करेंगे, 9वें भाग में एक्सरसाइज एंड GLAS। GLAS का फुल फॉर्म है ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम। बाय दैट वी गेट द एनर्जी। हम सब ऊर्जा, हमें ट्रेनिंग में, खेल में सहभागिता के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। वी रिक्वायर एनर्जी टू पार्टिसिपेट इन एनी ट्रेनिंग सेशन। तो ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। और अंतिम भाग में हम बात करेंगे एक्सरसाइज एंड इम्यून सिस्टम, कि एक्सरसाइज का हमारी रोग प्रतिरोधक, इस भाग को अतिरिक्त सम्मिलित किया गया है क्योंकि आज के दिन हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है टू फेस कोविड-19 पैंडेमिक। तो एक्सरसाइज का हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ क्या संबंध है उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कहानी को शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। शुरू कहानी पहले एक्सरसाइज साइंस। नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है, आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी दोहरा लेते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, क्योंकि एक आधार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वी आर प्रिपेयरिंग ए बेस, कि ठीक से आगे चल पाए, ठीक से आगे की बातों को समझ पाए, इसलिए बात करेंगे एक्सरसाइज साइंस की। एक्सरसाइज साइंस इज द स्टडी, अध्ययन है, सीधा सा बात है, विषय है तो अध्ययन है। किस प्रकार का अध्ययन है? ऑफ बॉडीली मूवमेंट्स, शरीर की गतिविधियों का अध्ययन है। कैसी गतिविधियां? दैट द एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू, जिनका योगदान है किन किन क्षेत्र में? ह्यूमन फिटनेस, होलिस्टिक वेलनेस, ऑलराउंड डेवलपमेंट में, लॉन्गेविटी। और इस एक्सरसाइज साइंस के जो कंसेप्ट में, हम एक्सरसाइज साइंस में जो इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं, इसमें लॉन्ग टर्म प्लान भी होती है जो कि किसी भी खिलाड़ी के लिए 4 से 8 साल तक का बनाया जाता है, जिसमें है एनुअल ट्रेनिंग प्लान, ऑल्सो ईयरली प्लान है, फिर मैक्रो साइकिल्स है। मैक्रो साइकिल मींस मंथली प्लान मींस 2 to 6 वीक्स। और फिर है माइक्रो साइकिल मींस 3 to 7 डेज। और एक प्रशिक्षण सत्र होगा। कुल मिलाकर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना कि लॉन्ग टर्म प्लान हो सकती है, एनुअल हो सकती है, मैक्रो साइकिल हो सकती है, माइक्रो साइकिल हो सकती है, सेशन हो सकता है। तो ये कहानी थी। तो कुल मिलाकर ध्यान रखें कि एक ऐसा विज्ञान, ऐसे विज्ञान का अध्ययन है जिसमें हम शारीरिक गतिविधियों को पढ़ते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं, जिनका योगदान होता है ह्यूमन फिटनेस, हमारी फिटनेस को मजबूत करने में,
हमारे हॉलिस्टिक वेलनेस को इम्प्रूव करती है और अच्छी उम्र प्रदान करती है। तो कहानी थी। तो दूसरे भाग जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं पहले बता चुका हूँ कि आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन, कांसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग लोड। क्योंकि इस भाग से कुछ शब्द आगे आएंगे, in this I will discuss about the different terminologies. उन terminologies का, उन शब्दों का अर्थ समझे बिना we will not be able to proceed in a proper way. हम आगे ठीक से नहीं बढ़ पाएंगे इन शब्दों का जब तक हमें अर्थ का ज्ञान न हो। तो शुरू करते हैं ट्रेनिंग लोड की परिभाषा से। परिभाषा शुरू करते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में जानने का प्रयास करते हैं। Training load is a bodily or nervous demand made on an organism caused by well-directed motor stimuli. ये मेरी परिभाषा नहीं है, आपकी परिभाषा नहीं है। This is the definition given by eminent scholar from the field of training. कि प्रशिक्षण के क्षेत्र के एक दिग्गज ने परिभाषा दी है, इसको हिंदी में समझते हैं और इसका अर्थ हमें ठीक से पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग लोड इज ए बॉडीली और नर्वस डिमांड। ट्रेनिंग लोड एक डिमांड है, लेकिन परिभाषा में कहा गया है डिमांड ऑफ द बॉडी एज वेल एज माइंड, कि जो भी प्रशिक्षण का जो है प्रशिक्षण भार है वो केवल शारीरिक डिमांड नहीं है, शारीरिक आवश्यकता नहीं है, देयर इज अ डिमांड ऑफ द माइंड आल्सो। इट मींस दिस इफेक्ट आवर माइंड आल्सो बॉडी आल्सो, दोनों शरीर और मस्तिष्क दोनों ही, मन दोनों प्रभावित होते हैं। इट्स अ बॉडीली डिमांड मेड ऑन एन ऑर्गेनिज्म। यहाँ जो ऑर्गेनिज्म शब्द जो किया गया है दिस इज स्पेसिफिक टू ए स्पोर्ट्स पर्सन, कि किसी भी व्यक्ति विशेष, स्पोर्ट्समैन को, खिलाड़ी को। ट्रेनिंग लोड इज ए बॉडीली नर्वस डिमांड मेड ऑन ऑर्गेनिज्म caused by means given by, किसके द्वारा दिया गया? caused by well directed motor stimuli, means by the help of motor actions, running, jumping, climbing, throwing, दुनिया भर के एक्टिविटीज उनके द्वारा, मे बी प्रेशर ट्रेनिंग, मे बी सर्किट ट्रेनिंग, मे बी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, मे बी फर्टिलाइट ट्रेनिंग, दुनिया भर की ट्रेनिंग से। और एक शब्द और जोड़ दिया, इन ए वेल डायरेक्शन, सही दिशा निर्देश में। जब तक सही दिशा निर्देश में नहीं होंगे वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द डिजायर्ड रिजल्ट्स, हम वांछित लाभ की अपेक्षा नहीं कर सकते। वेल डायरेक्शन, यदि वेल डायरेक्शन में नहीं होता, ट्रेनिंग लोड जितनी मेहनत करें और हमें परिणाम मिले, तो इसका अर्थ हुआ कि रिक्शा चालक तो सुबह से शाम तक ट्रेनिंग ही करता है, वो तो वर्क लोड लेता है, भार ग्रहण करता है। अगर नहीं तो फिर तो उसको वर्ल्ड चैंपियन होना चाहिए, लेकिन नहीं होता क्योंकि वेल डायरेक्शन नहीं है। इस प्रकार का हमें नहीं चाहिए। इट शुड बी स्पेसिफिक इन नेचर, इट शुड बी साइंटिफिक इन नेचर, प्रकृति से विशेष हो, प्रकृति से वैज्ञानिक हो, तभी लाभ होगा, नहीं तो लाभ नहीं होगा। तो ट्रेनिंग लोड की परिभाषा को जानने के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि ट्रेनिंग लोड दो प्रकार से, दो भागों में विभाजित करते हैं। इनर लोड, आंतरिक भार। अब प्रश्न उठा कि आंतरिक भार क्या है? Inner load is given to the individual. Inner load is the internal changes that takes place due to outer load. जो भी हम करते हैं, चाहे किसी प्रकार का प्रशिक्षण करें, उस कारणवश शरीर के आंतरिक जितने भी परिवर्तन होते हैं वो कहलाते हैं इनर लोड। इंक्रीज इन द हार्ट रेट, इंक्रीज इन द रेस्पिरेटरी रेट, इंक्रीज इन द लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन। लेकिन इनर लोड की, क्योंकि हम तो प्रशिक्षण की बात करेंगे, तो इनर लोड पर, एक आंतरिक भार की विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, आंतरिक भार पर बल नहीं देंगे। हम तो विस्तार से चर्चा करेंगे आउटर लोड की, बाह्य भार की, दैट इज गिवन टू द इंडिविजुअल फ्रॉम आउटसाइड, जो किसी व्यक्ति विशेष को बाहर से प्रदान किया जाता है। बात हो चुकी है ट्रेनिंग लोड की परिभाषा के दौरान, वी हैव डिस्कस्ड किसी प्रकार की ट्रेनिंग हो सकती है। तो इस आउटर लोड को, आउटर लोड इज डिवाइडेड इनटू टू सब पार्ट्स, इस आउटर लोड को दो विभिन्न उपभागों में विभाजित किया गया है, इंटेंसिटी एंड डेंसिटी, दोनों शब्द। आप जिनका भी माइक अनम्यूट है प्लीज म्यूट कीजिए, थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। आउटर लोड को दो भागों में विभाजित किया गया, इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम। इंटेंसिटी मींस द स्पीड ऑफ वर्क डन, जिस गति से कार्य किया जाता है वो कहलाता है इंटेंसिटी। अगेन आई रिपीट, स्पीड ऑफ वर्क डन, किए गए कार्य की गति। दूसरा वॉल्यूम, वॉल्यूम इज टोटल वर्क डन, कुल किया गया कार्य। किसी भी प्रशिक्षण सत्र में हम एक गति भी बनाए रखते हैं और जो कुल किया गया कार्य है वो वॉल्यूम हो गया, किस गति से किया गया, इंटेंसिटी। बोथ, दोनों ही, इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम बोथ आर सब डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दोनों को ही दो उपभागों में विभाजित किया गया है। अब प्रश्न उठा, what are these two subclasses? Intensity is divided into two, intensity and density. Intensity की बात हम कर चुके हैं, स्पीड ऑफ वर्क डन, किए गए कार्य की गति। हम सब जानते हैं कि कोई भी कार्य निरंतर गति के साथ नहीं किया जा सकता,
वी हैव टू टेक रेस्ट पीरियड्स इन बिटवीन, बीच में हमें कुछ आराम के अंतराल लेने होंगे। द रेस्ट पीरियड बिटवीन द टू सेट्स ऑफ इंटेंसिटी इज नोन एज डेंसिटी, कि जो हम गति के साथ कार्य कर रहे हैं, गति के साथ कार्य करने जो कर रहे हैं उसके बीच में जो छोटे छोटे आराम के अंतराल लेते हैं वो डेंसिटी है। दूसरी तरफ वॉल्यूम इज आल्सो डिवाइड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स। पहला है ड्यूरेशन। यदि ड्यूरेशन शब्द का यदि हम डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं तो ड्यूरेशन का अर्थ होता है समय, समय से संबंधित है, लेकिन नहीं, यहाँ पर ड्यूरेशन का अर्थ समझिए दैट में बी डिस्टेंस ऑल्सो, दैट में बी टाइम ऑल्सो, यदि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की भाषा में बात करें। और अगला हो गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ रिपीटिशंस, किसी भी एक एक्टिविटी को कितनी बार दोहराते हैं, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो बार बार बात होगी, तो इन चारों शब्दों का अर्थ हमें क्लियर होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, डेंसिटी, इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रिपीटिशंस, ड्यूरेशन डिस्टेंस या टाइम, डेंसिटी रेस्ट पीरियड बिटवीन द टू सेट्स ऑफ इंटेंसिटीज, इंटेंसिटी मीन्स स्पीड ऑफ वर्क डन। यदि आपको मान लीजिए आपने किसी बच्चे से कहा, किसी एथलीट से कहा आपको 100 मीटर के 10 स्प्रिंट लगाने हैं और एक स्प्रिंट को आपको 15 सेकंड में पूरा करना है और एक से दूसरी स्प्रिंट के बीच में मान लीजिए 5 मिनट का रेस्ट लेना है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो होगी 10, ड्यूरेशन होगी 100 मीटर, डेंसिटी होगी 5 मिनट और इंटेंसिटी होगी 15 सेकंड। तो किसी भी लोड का निर्धारण करेंगे जिनमें इन चारों कारकों का पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी क्या है। तो ये कहानी थी कंसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग लोड की। तो क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग लोड के दौरान ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग लोड दिस टर्मिनोलॉजीज विल अपीयर, ये आपके समक्ष प्रकट होंगी, ये टर्मिनोलॉजीज जिनका अर्थ बार बार चर्चा की जाएगी। अब ट्रेनिंग इफेक्ट की बात करें। एक अटपटी सी बात है, आप मेरी बात से सहमत होंगे। नाउअडेज एट प्रेजेंट सिचुएशन, किसी भी समय की बात करें, बेशक हम एवरी इंडिविजुअल एक्सपेक्ट द स्पॉन्टेनियस रिजल्ट्स। हम केवल खेल के क्षेत्र में ही क्यों बात करें, प्रशिक्षण के क्षेत्र में ही क्यों बात करें, किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति चाहता है कि मैंने अभी किया, अभी तुरंत मुझे परिणाम मिले। तो ट्रेनिंग प्रशिक्षण के बारे में भी एथलीट जैसे अभ्यास शुरू करता है वो चाहता है कि मुझे अभी तुरंत परिणाम मिले इसके, ऐसा संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो किस किस प्रकार के इफेक्ट हो सकते हैं? पहला इफेक्ट होता है सीधी सी बात इमीडिएट इफेक्ट, तत्काल प्रभाव। तत्काल प्रभाव का मतलब है ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर द ट्रेनिंग सेशन, कि अभ्यास करते वक्त जो परिवर्तन हो शरीर में या तत्काल बाद जो प्रभाव पड़े जो प्रशिक्षण सत्र की समाप्ति के बाद, वो कहलाता है इमीडिएट इफेक्ट। और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि तुरंत तत्काल प्रभाव, पर ऐसा नहीं है। उसके डिलेड इफेक्ट भी हैं, दीर्घकालिक प्रभाव भी हैं। दीर्घकालिक प्रभाव मींस फाइनल आउटकम ऑफ द ट्रेनिंग सेशन, जो दैट में अपीयर आफ्टर फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स, जो कुछ दिनों बाद उजागर हो सकते हैं, कुछ महीनों बाद उजागर हो सकते हैं, लगातार निरंतर हम करें तो। लेकिन एक और प्रकार का एक प्रभाव है क्यूमुलेटिव इफेक्ट। क्यूमुलेटिव इफेक्ट मींस हम किसी भी प्रशिक्षण सत्र में एक प्रकार की गतिविधि तो करते नहीं, हम अलग अलग गतिविधियां करते हैं, हम रनिंग भी करते हैं, जंपिंग भी करते हैं, वेट ट्रेनिंग भी करते हैं, प्रेशर ट्रेनिंग भी करते हैं, फर्टलैक ट्रेनिंग भी करते हैं, दुनिया भर की ट्रेनिंग करते हैं ना। तो प्रत्येक प्रकार के अभ्यास का एक जैसा प्रकार एक जैसा प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट में जितनी भी गतिविधियां हम अपने प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित करते हैं, सभी कुल मिलाकर किस प्रकार का प्रभाव छोड़ते हैं, दैट इज नॉट द क्यूमुलेटिव इफेक्ट। द क्यूमुलेटिव इफेक्ट इज द इफेक्ट ऑफ द सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ all the practices that are included in a training session. तो ध्यान ये रखना चाहिए हमें एज ए कोच या एज ए एथलीट कि we should not expect only about the immediate effect. We should wait for with patience, एक सहनशीलता के साथ, पेशेंस के साथ हमें वेट करना चाहिए डिलेड इफेक्ट के और क्यूमुलेटिव इफेक्ट के परिणाम के बारे में भी अगली बात करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के सिद्धांत मुख्य भाग है, महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि ऑप्टिमल बेनिफिट्स किसी भी प्रशिक्षण के तभी मिलेंगे जब आप सिद्धांतों पर आधारित प्रशिक्षण देंगे। तो प्रिंसिपल्स की बात करें तो पहले प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। आपने सिद्धांतों के बारे में तो शुरू से सुना ही, हम सब ने सुना है। प्रिंसिपल्स दो तरह के होते हैं, वन इज द फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल, सेकंड वन इज द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। एक तो दार्शनिक सिद्धांत और दूसरे
वैज्ञानिक सिद्धांत। दार्शनिक सिद्धांत वो होते हैं जो कि विजन पर, दूरदर्शिता पर, दृष्टिकोण पर, बड़े बड़े फिलोसफर्स का, दार्शनिकों के दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं। एंड दीज आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ होंगे, कुछ नहीं कह सकते। 100 साल बाद हो सकता है कि लोगों का दृष्टिकोण बदल जाए। These are flexible. दूसरे प्रिंसिपल्स है साइंटिफिक इन नेचर। These are fixed, these are rigid, these cannot be changed, परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग है किसी कोचेस के या प्रशिक्षक के दृष्टिकोण पर आधारित बातें नहीं होगी। I will discuss on the basis of the scientific principles. वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित बात होगी तो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित बात होगी। These are fixed, these are scientifically proved, these are proved by the help of researches. तो ये प्रिंसिपल्स क्या है? इंप्रूविंग परफॉर्मेंस इज जस्ट नॉट अबाउट द ट्रेनिंग मोर। ऐसा पहले कह चुका हूं कि केवल बहुत अधिक प्रशिक्षण लेना, करना, अभ्यास करना ही आपके प्रदर्शन को नहीं बढ़ाएगा, लेकिन ये होना चाहिए केयरफुली प्लान्ड, एक ध्यान पूर्वक नियोजन होना चाहिए किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का। तो बिफोर डिजाइनिंग ए ट्रेनिंग प्रोग्राम वन नीड टू आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट द इंडिविजुअल। हमारे अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना है हमें, वी वांट टू प्रिपेयर ए ट्रेनिंग प्रोग्राम, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में अराइज इन आवर माइंड। विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस उत्पन्न हो सकते हैं हमारे मस्तिष्क में। सभी प्रश्नों की सूची प्रस्तुत करना तो संभव नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्प्ले ऑल द क्वेश्चंस। उसमें से कुछ क्वेश्चंस है हाइपोथेटिकल, कल्पनापूर्ण, परिकल्पनापूर्ण क्वेश्चंस है। कैसे क्वेश्चंस? पहला क्वेश्चन होगा व्हाट इज द इनिशियल लेवल ऑफ द फिटनेस। जो भी अभ्यास करता है उसका इनिशियल लेवल ऑफ फिटनेस क्या है? हाउ ओल्ड आर दे, की उम्र कितनी है, क्योंकि प्रत्येक उम्र में प्रत्येक एक प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता, हम सब जानते हैं। आर दे मेल और फीमेल, महिला है पुरुष है, क्योंकि दोनों का एक तरह का प्रशिक्षण नहीं दिया सकता। व्हाई डू दे वांट टू ट्रेन, क्या फिटनेस बढ़ानी है उनको, या परफॉर्मेंस बढ़ानी है, या स्ट्रेंथ बढ़ानी है, एंड्योरेंस बढ़ानी है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, एजिलिटी बढ़ानी है, पर्पस क्या है? अगला है व्हाट इज द एम ऑफ देयर मोटिवेशन, यदि अभिप्रेरण का क्या स्रोत क्या है, एम क्या है, कि वो मेडल लाना चाहते हैं या फिजिकल फिटनेस, क्या हेल्थ रिलेटेड फिटनेस इंप्रूव करना चाहते हैं, क्या एम है, मोटिवेशन क्या है उनका, अभिप्रेरित, इसके पीछे अभ्यास सत्र के पीछे अभिप्रेरण क्या। केवल यही क्वेश्चन नहीं, इनसे मिलते जुलते बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं मस्तिष्क में किसी भी प्रशिक्षण लेने वाले व्यक्ति विशेष के। तो इन सब का हमें उत्तर चाहिए तो क्या? व्हेन अप्लाई एनी ट्रेनिंग, व्हेन प्लानिंग एनी ट्रेनिंग, यदि किसी भी प्रशिक्षण का हम नियोजन करना चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं, वन हैव टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग, हमें इन सिद्धांतों पर आधारित ही करना होगा। और इन सिद्धांतों को याद करने का तरीका आप सबके सामने, एक स्पोर्ट शब्द याद रहे तो पांचों सिद्धांत याद है। 5 अल्फाबेट्स हैं, 5 अक्षर है इसमें, SPORT, ईच हैज ए स्पेसिफिकेशन। एस का भी कुछ अर्थ है, पी का भी कुछ अर्थ है, ओ का भी कुछ अर्थ है, आर का भी कुछ अर्थ है, टी का भी कुछ अर्थ है। इन पांचों सिद्धांतों की विस्तार से चर्चा करेंगे जिनके आधार पर हमें प्रशिक्षण सत्र का निर्माण करना चाहिए। पहले से शुरू करते हैं। स्पेसिफिसिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेसिफिसिटी, विशेषता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन का सिद्धांत, ओवरलोड का सिद्धांत, रिवर्सिबिलिटी का सिद्धांत और TDM का सिद्धांत। ये 5 हैं। The principle of specificity, principles of progression, principle of overload, principle of reversibility, principle of TDM. I will discuss about all 5 different principles in a detailed way. विस्तार से इन पांचों की चर्चा करते हैं। सर सब कुछ ठीक है, भाषावली वगैरह ठीक है, स्पीड वगैरह चल जाएगा? Yes, sir. ओके ठीक, पहले से शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, विशेषता का सिद्धांत कुछ नहीं, सिंपल Yes, सा है। sir. देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन। स्पेसिफिसिटी क्या करता है? 3 शब्द याद रहे, टाइप, पार्ट और वे। कि वन मस्ट डू द स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्टिविटी टू इंप्रूव स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन स्पेसिफिक वे, यानी स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्टिविटी शामिल करनी चाहिए, इन जनरल नहीं होनी चाहिए। दूसरी है स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्टिविटी should be adapted for to develop the specific part of the body, और इन स्पेसिफिक वेज होनी चाहिए। तो ये 3 शब्द हैं, स्पेसिफिक टाइप हो, स्पेसिफिक पार्ट और स्पेसिफिक वे। सिंपल सी बात है, लेकिन जो अगले के सिद्धांत है वो थोड़े से एक टेक्निकल है। प्रोग्रेशन की बात करें, प्रोग्रेशन मींस लीनियर इंक्रीज ना करें लोड में थोड़ा सा एडेप्टेशन के लिए मौका देना चाहिए। प्रोग्रेशन मींस ग्रेजुअल इंक्रीज, धीरे धीरे बढ़ाकर चले। हम सब जानते हैं, नई बात नहीं है। तो व्हेन ए परफॉर्मर फर्स्ट स्टार्ट्स एक्सरसाइजिंग, कोई भी व्यक्ति विशेष एक्सरसाइज करना शुरू करता है, उसका इनिशियल फिटनेस पुअर भी हो सकता है
यदि हम ट्रेनिंग को बहुत क्विकली बढ़ाएंगे, if we increase the training quickly, too quickly, the body will not have the time to adapt. Adaptation नहीं होगा, adaptation नहीं होगा, इंजरी की चांसेस हम। तो कुल मिलाकर हम बचपन से सुनते हैं स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस, स्लो एंड स्टेडी मीन्स द रेस, धीरे स्थिर चलना चाहिए। इट मीन्स फॉर एडेप्टेशन पर्पसेस, अनुकूलनता के लिए हमें एक पर्टिकुलर लोड को कुछ समय तक किया जाना चाहिए, 7 to 10 डेज, उसके बाद बढ़ाएं। जब हम मान लें, एंश्योर कर लें, हमें एंश्योर हो जाए कि यस एडेप्टेशन हैज बीन डन, यानी हमारा शरीर अनुकूलित हो गया है उस पर्टिकुलर लोड के प्रति, तभी हमें लोड बढ़ाना चाहिए, अन्यथा उसी लोड को अपनाना चाहिए। क्यों? इसको और थोड़ा गहराई से बात करने का प्रयास करते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि हम प्रशिक्षण करते हैं, मान लो कि आपने 2 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया इवनिंग में, तो हमारी परफॉर्मेंस बढ़ेगी या घटेगी? तो उत्तर होगा घटेगी, परफॉर्मेंस घटेगी। आपने कुछ अभ्यास किया था, अगर 100 kg बेंच प्रेस से, तो आप 100 नहीं कर पाएंगे, 50 करना मुश्किल हो जाएगा पूरा फटीग के बाद। रात को रेस्ट लिया तो परफॉर्मेंस दोबारा नॉर्मल लेवल की तरफ जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, वो नॉर्मल लेवल तक नहीं जाती, नॉर्मल लेवल से भी थोड़ा ऊपर जाती। हो सकता है 5-10 ग्राम ही बढ़ाओ, परफॉर्मेंस थोड़ी सी बढ़ी हो। दैट फेज इज नोन एज फेज ऑफ सुपर कंपनसेशन। वो कहलाता है फेज ऑफ सुपर कंपनसेशन। प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र के बाद आता है। तो उस सब सुपर कंपनसेशन में मान लीजिए कि आपने सुपर कंपनसेशन आना दूर की बात है, आपने पहले ही नॉर्मल लेवल तक भी नहीं पहुंचा था और नया लोड दे दिया, फिर परफॉर्मेंस घटी, तो धीरे धीरे ओवरलोड का रूप ले लेगी और वो फिर परफॉर्मेंस घटना शुरू हो जाएगी। तो हमें वेट करना चाहिए एक पर्टिकुलर सुपर कंपनसेशन तक। और बात करते हैं अगला ओवरलोड का सिद्धांत। ओवरलोड का सिद्धांत ये क्या कहता है कि यदि हम अपने फिटनेस लेवल को बनाए रखना चाहते हैं, तो जो हमारी क्षमता है उस अनुरूप करते रहें तो काफी है। लेकिन फिटनेस कैन ओनली बी इम्प्रूव्ड बाय ट्रेनिंग मोर देन यू नॉर्मली डू। आमतौर पर जितना करते हैं उससे अधिक करेंगे तभी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, नहीं तो सामान्य बनी रहेगी, जो स्थिर बनी रहेगी। Unless the body is subjected to the increased demands, improvements in the physical fitness will not be made. यदि if a physical fitness program is effective, यदि हम प्रभावशाली फिटनेस प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो must place increased and specific demands on the body. The training levels remain the same. If the training levels remain the same, यदि स्तर समान रहता है, then the program will only maintaining the participants level of fitness. तो वो हमारे स्तर को बनाए जरूर रखेगा, इम्प्रूव नहीं करेगा। इसलिए वी शुड डू मोर देन वी नॉर्मली डू। तो जो ओवरलोड के सिद्धांत की बात करते हैं, तो ओवरलोड का जो ये सिद्धांत है ओवरलोड वाला, इसको विस्तार से इसकी चर्चा करें तो हमने 5 सिद्धांतों को अल्फाबेट के माध्यम से रिमेंबर किया था, याद किया। SPORT, S स्पेसिफिसिटी, P मीन्स प्रोग्रेशन, और तीसरे की बात हो रही है O मीन्स ओवरलोड। लेकिन इस ओवरलोड में भी 4 अल्फाबेट और याद रखें तो पूरी तरह से सिद्धांत के बारे में जान जाएंगे। फिट, FIT, ईच अल्फाबेट हैज अ मीनिंग। F का भी कुछ अर्थ है, I का भी कुछ अर्थ है, पहले T का भी कुछ अर्थ है, अगले T का भी कुछ अर्थ है। तो 4 अल्फाबेट है फिट, इसका अर्थ क्या है? F मीन्स फ्रीक्वेंसी, बात हो चुकी है। हाउ ऑफन यू ट्रेन मीन स्पीड ऑफ वर्क डन, किए गए कार्य की गति, पहले चर्चा हो चुकी है ट्रेनिंग लोड के दौरान। दूसरा नंबर ऑफ रिपीटिशन, फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ रिपीटिशंस, नंबर ऑफ रिपीटिशन। इंटेंसिटी मींस हाउ हार्ड यू ट्रेन। स्पीड ऑफ वर्क डन पहले बात हो चुकी है। टाइम मींस ड्यूरेशन, दैट में बी ड्यूरेशन आल्सो, दैट में बी डिस्टेंस आल्सो, हाउ लॉन्ग यू ट्रेन फॉर। और तीसरा टाइप, किस प्रकार का टाइप, किस प्रकार की एक्टिव प्रकार की गतिविधि को सम्मिलित करें। तो ये कहानी है। फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, टाइम कितना होगा, टाइप किस प्रकार की होगी, ये बताता है प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। ओवरलोड में इन बातों का ध्यान रखें तो कैसा रहे उसकी चर्चा करते हैं। इनमें से फिट में से जो F पहला शब्द है, F फ्रीक्वेंसी कितनी हो। तो फ्रीक्वेंसी की बात, अब महत्वपूर्ण बात, अब तक के वक्तव्यों में बहुत महत्वपूर्ण बात आप सबके समक्ष है। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड क्लिनिकल एक्सीलेंस है, उसने सुझाव दिया है यदि किसी व्यक्ति विशेष का एम, ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन हेल्थ है, यदि हम अपने स्वास्थ्य के स्तर को बनाए रखना चाहते हैं, खेल में सहभागिता हमारा वो एक एजेंडा नहीं है, उस दशा में
कि 30 मिनट प्रतिदिन काफी है, पर्याप्त है। इन्होंने कहा है, किसकी बात है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड क्लिनिकल एक्सीलेंस। और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 5 टाइम्स ए वीक। सप्ताह में 2 दिन रेस्ट कीजिए, 5 दिन ही पर्याप्त है। लेकिन यहाँ पर इससे केवल आपको हेल्थ ठीक बनी रहेगी, परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगी। परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे हैं, किसी खेल के प्रदर्शन की बात नहीं हो रही है। यदि हमारा एम है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस हो तो ट्रेनिंग इज बेस्ट डन रेगुलरली रादर देन द रैंडम इंटरवल्स। ऐसा नहीं कि जब मन में आया तब कर लिया, जब मन में आया नहीं किया। रैंडम इंटरवल्स पर नहीं होना चाहिए, रैंडमली नहीं होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ रेगुलरिटी शुड आल्सो बी फॉलोड। अगला है, दूसरा शब्द है इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी की बात होगी कि हेल्थ रिलेटेड फिटनेस की बात करनी है तो 30 मिनट चाहिए और एक हफ्ता में 5 दिन। अब बात करते हैं इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी करता है स्पीड ऑफ वर्क डन, कि किस गति से करें, किस गति से हमें अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए हमें 2 प्रकार के रेस्पिरेशंस का ज्ञान होना चाहिए। एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि हमें निर्धारण करना है कि किस प्रकार की इंटेंसिटी होगी। तो इन दोनों रेस्पिरेशन का क्या संबंध है, लेटर स्टेजेस में, अगली स्लाइड्स में बात होगी। लेकिन पहले यहाँ पर हम जान लें कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? मींस रेस्पिरेशन विद ऑक्सीजन, यानी पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो कार्य किया जाए वो कहलाता है एरोबिक। तो इसमें कोई फास्ट एक्सरसाइज नहीं की जाती, धीरे 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 लंबी अवधि के लिए की जाती है। दूसरी तरफ है एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ लिखा जरूर है विदाउट ऑक्सीजन, लेकिन विदाउट ऑक्सीजन तो कोई गतिविधि हो नहीं सकती। तो विदाउट ऑक्सीजन कुछ किताबों में जिक्र जरूर किया गया है, लेकिन एप्रोप्रिएट वर्ड इज, सही वाक्य क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ अनएडिक्वेट ऑक्सीजन, अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्योंकि जो हमारे टिश्यू लेवल पर, जो हमारे सेल लेवल पर जो स्टोर्ड ऑक्सीजन है उसी का प्रयोग करते हैं। इसमें एनारोबिक शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटीज होती हैं। तो बात तो हम इंटेंसिटी की कर रहे थे कि हमारी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, उसके लिए ही हमने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को जानने का प्रयास किया। तो इंटेंसिटी रेफर्स टू हाउ हार्ड यू वर्क ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन। हम सब जानते हैं कि किस स्पीड ऑफ वर्क डन, बात हो चुकी है। एक गुड वे टू मेजर इंटेंसिटी इज टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस हार्ट रेट, यानी इंटेंसिटी का निर्धारण करेंगे हम हार्ट रेट को मॉनिटर करके। हार्ट रेट को मॉनिटर हमें करना पड़ेगा कि द हार्डर यू वर्क द फास्टर योर हार्ट बीट्स। जितना भी हम कठिन कार्य करते हैं, जटिल कार्य करते हैं, स्टेनियस वर्क करते हैं, तो हमारी हार्ट रेट बढ़ती है, हम सब जानते हैं। तो उसके लिए हमें कंसेप्ट करना होगा द हार्ट रेट कैन इंडिकेट विच एनर्जी सिस्टम इज बीइंग यूज्ड, कि हमारी हार्ट रेट क्या है, उसके अनुसार निर्धारण होगा कि हमारा एनारोबिक सिस्टम यूज हो रहा है, एरोबिक सिस्टम यूज हो रहा है। और उसके लिए मैक्सिमम हार्ट रेट के कंसेप्ट हमारे पास है, मैक्सिमम हार्ट रेट। और मैक्सिमम हार्ट रेट का है, मैक्सिमम हार्ट रेट मींस योर मैक्सिमम हार्ट रेट इज द फास्टेस्ट, यानी कि ये वो अधिकतम गति है हृदय की 1 मिनट में बीट करने की। इससे ऊपर गई तो इट मींस वी आर इन अ रिस्क। तो किसी भी व्यक्ति विशेष की हार्ट रेट मेजर की जाती है 220 माइनस एज। मान लीजिए मेरी एज है 50 साल, आई एम 50 ईयर्स ओल्ड, तो मेरी मैक्सिमम हार्ट रेट होगी 220 माइनस 50 मींस 170। मान लीजिए किसी की उम्र है 20 ईयर्स ओनली, 20 साल केवल, तो उस व्यक्ति विशेष की मैक्सिमम हार्ट रेट होगी 220 माइनस 20 माइनस 200। 200 तक तो कम रिस्क है, रिस्क नहीं है। 200 से ऊपर उस व्यक्ति विशेष की हार्ट रेट जाएगी। इट मींस वो जो उसका जो जोन है वो रिस्क जोन है, कोलैप्स हो सकता है हार्ट रेट। ये एक मैक्सिमम हार्ट रेट का कंसेप्ट है। ठीक, यहाँ तो हम निर्धारित कर रहे हैं कि इंटेंसिटी कितनी हो। फ्रीक्वेंसी की तो बात हो चुकी थी, 5 टाइम्स ए वीक और 1 दिन में 30 मिनट, क्योंकि वहां पर्पस था हेल्थ रिलेटेड फिटनेस को इंप्रूव करना। लेकिन अब एरोबिक सिस्टम यूज को इंप्रूव करना है, एनारोबिक सिस्टम को यूज करना है, इंप्रूव करना है, उसके लिए इसको छोड़ते हैं। तो अब इफ द परफॉर्मर विशेस टू ट्रेन देयर एरोबिक सिस्टम, यदि हम अपने एरोबिक सिस्टम को ट्रेन करना चाहते हैं, एरोबिक सिस्टम को अच्छा मजबूत करना चाहते हैं, कि हमारी जो मैक्सिमम हार्ट रेट है उसका 60 से 80% हार्ट रेट रखनी होगी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रशिक्षण करते वक्त। और दूसरी तरफ यदि हम अनएरोबिक सिस्टम को ट्रेन करना चाहते हैं, स्प्रिंटर को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस दशा में
हमें अपनी हार्ट रेट को 80 से 90% रखना है मैक्सिमम का। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, महत्वपूर्ण बात है, द प्रिसाइज परसेंटेज लेवल यू ट्रेन एट विल बी यूज्ड अपॉन द करंट लेवल ऑफ फिटनेस। लेकिन यह हमने रेंज तो दे दी कि यदि एरोबिक सिस्टम को ट्रेन करना चाहते तो हार्ट रेट रहे 60 से 80%, एनारोबिक सिस्टम को ट्रेन करना चाहते तो 80 से 90%। लेकिन रेंज बता दी, रेंज बहुत है, 20% की रेंज है, 60 से 80, 80 से 90, 10%। तो कुल मिलाकर यह है कि यदि अनफिट परफॉर्मर है, यदि उसका हम एरोबिक फिटनेस इंप्रूव करें तो 60 के आसपास रहे, यदि वो फिट है तो 80 के आसपास रहे। यदि अनएरोबिक सिस्टम को ट्रेन कर रहे हैं, यदि वो फिट है तो 90 के आसपास रहे, 90% के आसपास रहे, नहीं तो 80% के आसपास रहे। तो यही है। आगे चलते हैं। 80 से 90%, इंपॉर्टेंट पॉइंट, 80 से 90% मैक्सिमम हार्ट रेट का रख कर यदि हम ट्रेनिंग देते हैं, 80 to 90% ऑफ द मैक्सिमम हार्ट रेट ट्रेनिंग इन द एरोबिक जोन इंक्रीजेस स्ट्रेंथ एंड पावर। ये हार्ट रेट रखेंगे मैक्सिमम हार्ट रेट का 80 to 90%। इस ट्रेनिंग जोन में यदि हम रखते हैं तो हमारे शरीर में विकसित होगी स्ट्रेंथ, ताकत और पावर। यदि हम रखते हैं 60 से 80% ऑफ द मैक्सिमम हार्ट रेट तो हमारे शरीर में इंप्रूव होगा स्टेमिना। स्टेमिना शब्द अप्रोप्रिएट नहीं है, अप्रोप्रिएट वर्ड इज एंड्योरेंस, एबिलिटी टू वर्क फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन, एबिलिटी टू डिले द फटीग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, कि थकान को देर तक हमें दूर रखना है, तो एंड्योरेंस इज द अप्रोप्रिएट वर्ड। तो अब बात करते हैं अगला टाइम। दो शब्दों की, दो अल्फाबेट्स की बात हो चुकी है, फ्रीक्वेंसी की बात हो चुकी है, इंटेंसिटी की बात हो चुकी है। अब बात करते हैं पहले टी की, द फर्स्ट टी, दैट इज द टाइम। टाइम कितना हो। इंटेंसिटी विल इफेक्ट द टाइम और ड्यूरेशन of each training session. The length of the session required to achieve improvements depends on the how hard a performer is training. तो यदि अब बात करते हैं कितनी देर रखें, सामान्य भाषा में बात करें, इस लिखी हुई भाषा को छोड़ दीजिए। यदि हम अपनी एरोबिक फिटनेस को इंप्रूव करना चाहते हैं, इफ वी वांट टू इंप्रूव आवर एरोबिक फिटनेस, तो हमें उस जोन में कम से कम अपनी हार्ट रेट को 20 मिनट रखना होगा, जो टारगेट जोन है। और दूसरी तरफ यदि हम एनारोबिक फिटनेस रखना चाहते हैं तो उसमें कम समय रखना पड़ेगा, कोई बहुत अधिक समय तक रखने की उस ट्रेनिंग जोन में आवश्यकता नहीं है। तो कॉन्सेप्ट एक शॉर्ट रहेंगे, शॉर्ट पीरियड रहेंगे, हाई इंटेंसिटी रहेगी, बर्स्ट रहेंगे, और लेंथी रेस्ट इंटरवल्स इन बिटवीन, और बीच में जो आराम के अंतराल होंगे वो बीच में अधिक होंगे। तो ये कहानी थी। अब बात करते हैं टाइप की। टाइप मीन्स if one's aim is simple health related fitness, यदि हमारा एम है स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस को बढ़ाना, उसमें वृद्धि करना, उसमें एक पारंगत होना, तो हम किस प्रकार का व्यायाम कर रहे हैं उसका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। उछलें, कूदें, भागें, जो भी करें, बट बस हमारा उद्देश्य इतना होना चाहिए कि टारगेट जोन में 20 मिनट तक हार्ट रेट को रखें, बस चाहे कैसे भी रखें, किसी भी प्रकार से रखें। ओवरलोड कैन बी अचीव्ड बाय चेंजिंग द टाइप ऑफ एक्सरसाइज। ओवरलोड टाइप ऑफ एक्सरसाइज से अर्जित किया जा सकता है, जैसे कि यू कुड लिफ्ट द सेम वेट बट इन अ डिफरेंट वे। एक ही अभ्यास को विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन यहाँ उद्देश्य हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का। अगला है रिवर्सेबिलिटी। रिवर्सेबिलिटी अगला सिद्धांत। तो इन चारों अल्फाबेट्स की हम बात कर चुके हैं, एफ फ्रीक्वेंसी, आई इंटेंसिटी, टाइम एंड हम बात कर चुके हैं इन चारों अल्फाबेट्स की। अब बात करते हैं चौथे सिद्धांत की, रिवर्सेबिलिटी। किसी भी स्पोर्ट्समैन ने एक अर्जित कर लिया कोई लेवल, एक पर्टिकुलर लेवल, इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां रुका रहेगा। रिवर्सेबल है, तुरंत आरंभिक रेखा पर पहुंच जाएगा, रिवर्सेबिलिटी है। तो कुल मिलाकर है कि मोस्ट ऑफ द अडेप्टेशन, जितनी भी अनुकूलताएं अडेप्ट किया, जितना भी ग्रहण किया, जितनी भी ग्रहणशीलता है, जितना भी हमने अर्जित किया, वो सब रिवर्सेबल है। दिस सिंपली मीन्स दैट अनलेस यू कीप ट्रेनिंग एनी फिटनेस लेवल विल बी लॉस्ट। तुरंत चली जाएगी। कैसे? इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड्योरेंस कैन बी, बहुत ही महत्वपूर्ण एक रिसर्च बेस्ड फाइंडिंग है, अनुसंधान पर आधारित बात। एंड्योरेंस कैन बी लॉस्ट इन द थर्ड ऑफ द टाइम इट टुक टू अचीव। 1/3 भाग में ही वापस पहुंच जाएगा आरंभिक स्थिति में। मान लीजिए आपने 3 महीने की सख्त मेहनत के बाद एक
अर्जित किया कुछ और बीच में 1 महीने का रेस्ट ले लिया तो वह 1/3 भाग में ही वो आरंभिक रेखा पर आएगा। दोबारा से आपको 3 महीने और ट्रेनिंग लोड लेना करना होगा उस अवस्था को दोबारा से अचीव करने के लिए। तो एंड्योरेंस तो 1/3 ड्यूरेशन में ही वापस पहुंच जाती है, आरंभिक रेखा पर पहुंच जाती है, लेकिन जो स्ट्रेंथ अर्जित कर ली जाती है दैट डिक्लाइंस वेरी स्लोली, वो बहुत तुरंत वापस नहीं जाती। बट इसका अर्थ ये नहीं है लैक ऑफ एक्सरसाइज विल स्टिल कॉज मसल इन एट्रोफी, यानी मसल की साइज में एक कमी आती रहेगी जितना भी रेस्ट आप करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी शुड बी फॉलोड, क्योंकि रिवर्सेबल है, सब कुछ रिवर्सेबल है। अगला 5वां सिद्धांत टीडीएम। टीडीएम क्या है? When planning a training program, it is important to vary the training a bit to prevent performance becoming bored. एक ही एक ट्रेनिंग शेड्यूल हम देते रहेंगे, बच्चे से सख्त करवाते रहेंगे तो बच्चा, विद्यार्थी या एथलीट, खिलाड़ी बोर हो जाएगा। तो हमें वैरायटी शामिल करनी चाहिए, वैरायटी, जिससे कि बोरिंग ना हो, बोर ना हो। It is if the every training session is the same, the performance can lose enthusiasm and motivation for training. लेकिन समस्या क्या है? You should include the variety, लेकिन समस्या क्या है? हमेशा हर जगह पॉसिबल नहीं है। वेट लिफ्टिंग में है, वेट लिफ्टिंग में कितनी वैरायटी हम शामिल करेंगे? टेक्निक है, मान लीजिए वेट लिफ्टिंग में 2 ही टेक्निक है, क्लीन एंड स्नैच है, क्लीन एंड जर्क है, तो कितने उनकी वैरायटी शामिल करेंगे? कुछ गेम्स हैं उसमें तो ड्रिल्स शामिल, टीम गेम्स में वैरायटी हो सकती है, दुनिया भर की वैरायटीज हो सकती है, लेकिन ऐसे कुछ खेल है जिनमें वैरायटी संभव नहीं है। बेशक यहाँ सुझाव दिया गया है कि बोर ना हो, लेकिन कुछ गेम में तो एक रिपीटिशंस होंगे ही, बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं हो सकती। अगला है मॉडरेशन ट्रेनिंग, अगला भाग प्रस्तुतिकरण का। मॉडरेशन मींस अचीविंग ए बैलेंस बिटवीन नॉट ट्रेनिंग एंड ओवर ट्रेनिंग। एक संतुलन बना रहे, ओवर ट्रेनिंग भी हार्मफुल है एंड लेस ट्रेनिंग भी हार्मफुल है। लेस ट्रेनिंग हार्मफुल तो नहीं है, लेकिन लेस ट्रेनिंग का कोई इफेक्ट नहीं है, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो अचीविंग राइट बैलेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। Without proper rest and recovery time, performance can become too tired and train effectively the becoming stressed and irritable. इसलिए एक लोड एंड रिकवरी के बीच में एक तालमेल बना रहे। सुपर कंपनसेशन की बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि लैक ऑफ रिकवरी होगी, रिकवरी कम होगी तो परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी। टू मच रिकवरी होगी तो सुपर कंपनसेशन का हम फायदा नहीं ले पाएंगे। कुल मिलाकर यह हमें ज्ञान और विवेक के अनुसार हमें संतुलन स्थापित करना है, दोनों के बीच में, लोड और रिकवरी के बीच में हमें संतुलन स्थापित करना है। ओपन विंडो थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ओपन विंडो थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रश्न उठा कि महत्वपूर्ण बिंदु क्यों है, ऐसा इसमें क्या है? अब वी आर फेसिंग कोविड-19 पेंडेमिक, हम कोविड-19 पेंडेमिक का सामना कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। तो यहाँ पर ओपन विंडो थ्योरी कहती है कि अगर ये एक लेटेस्ट आर्टिकल था 2020 में छपा है, तो अगर हम इंटेंस में ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं, या तो लो इंटेंसिटी से कर सकते हैं, या मॉडरेट मीडियम से कर सकते हैं, हाई इंटेंसिटी से। तो ये ओपन विंडो थ्योरी कहती है कि यदि हम इंटेंस एक्सरसाइज करेंगे, हाई इंटेंसिटी के साथ एक्सरसाइज करेंगे तो जो एक्सरसाइज प्रोग्राम समाप्त होने के अगले 3 से 72 घंटे एक ओपन विंडो घटित होती है। अब प्रश्न उठा कि ओपन विंडो क्या है? इस 3 से 72 घंटे में, इस ओपन विंडो में आवर बॉडी बिकम्स वेरी सेंसिटिव टू द इन्वेडर्स। एक आक्रमणकारी जीवाणुओं के प्रति हमारा शरीर बड़ा संवेदनशील हो जाता है। वो आक्रमणकारी जीवाणु बड़ी आसानी से हमारे शरीर में आक्रमण कर सकते हैं, जकड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें इंटेंस एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। यदि इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो उस दशा में 3 से 72 घंटे सतर्क रहना चाहिए। तो इंटेंस करेंगे तो ओपन विंडो होगी, अगर लो इंटेंसिटी से करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यह सुझाव दिया है बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वानों ने, बड़ी बड़ी प्रगाढ़ विदुषियों ने, कि आज के दिन इस कोविड-19 पेंडेमिक में हाई इंटेंसिटी को भी थोड़ा अवॉइड करें, लो इंटेंसिटी को भी अवॉइड करें। वी शुड प्रैक्टिस विद मॉडरेट इंटेंसिटी। हमें अभ्यास करना चाहिए मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ। तो ये ओपन विंडो की कहानी थी। अब एंड्योरेंस ट्रेनिंग के बारे में कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्यों के बारे में जानना भी अति आवश्यक है। सम फैक्ट्स अबाउट एंड्योरेंस ट्रेनिंग। क्या फैक्ट्स हैं? ये जो एक सामग्री मुझे बड़ी अच्छी लगी लेटेस्ट ट्रेंड से, उसमें
जो बेन ग्रीनफील्ड ने एक लिखा था, एक पब्लिश किया एक आर्टिकल, एक पत्रिका ट्रेनिंग पीक्स, जून में प्रकाशित हुआ 2012 में। एंडोरेंस ट्रेनिंग के बारे में कुछ फैक्ट्स की चर्चा की गई है। फैक्ट्स क्या है, फैक्ट्स जानने। कोई भी व्यक्ति विशेष जंप करता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल से एक्सरसाइज प्रोग्राम में, यानी वो पहले कोई प्रोग्राम नहीं करता था, पहले कोई एक्सरसाइज नहीं करता था, उसने एक्सरसाइज प्रोग्राम में भाग लेना शुरू किया, तो क्या हुआ, डिफरेंसेस इन सेक्सुअल ड्राइव। और केवल डिफरेंस ही नहीं, डिफरेंस भी होंगे सिग्निफिकेंट, सार्थक अंतर पाए गए दोनों के बीच में। क्या पाए गए? स्टडीज, जितने भी अध्ययन थे उन अध्ययनों ने दर्शाया है कि फॉलोइंग 20 मिनट्स ऑफ विग्रस एक्सरसाइज, को 20 मिनट तक कोई विग्रस कठिन जटिल एक कठिन एक्सरसाइज करता है, उस दशा में वुमेन आर, महिलाएं मोर सेक्सुअली रेस्पॉन्सिव हो जाती हैं, और पुरुषों में हाई टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन पाया गया है पुरुषों में, और हम सब जानते हैं विच कोरिलेट विद द हायर सेक्सुअल इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। तो यह बात हम करते हैं इसके पॉजिटिव वे में, लेकिन नेगेटिव वे में भी मान लें। बट दीज आर लिंक्ड विद द शॉर्ट इंटेंस एक्सरसाइज, ये शॉर्ट इंटेंस एक्सरसाइज से ही इसका संबंध है। लेकिन दूसरी तरफ अध्ययन यह भी कहते हैं कि टू मच एक्सरसाइज इज एसोसिएटेड विद द डिक्रीज इन द टेस्टोस्टेरोन, बहुत अधिक व्यायाम करेंगे तो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा, सेक्सुअल डिजायर कम हो जाएगा। महिलाओं में बहुत अधिक एक्सरसाइज करेंगी तो दो हार्मोन है, एस्ट्रोजन है और प्रोगेस्टेरोन है, उनका भी सिक्रेशन कम होगा, और दीज टू हार्मोन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द सेक्स ड्राइव। तो बहुत अधिक व्यायाम करना भी हार्मफुल है। लेकिन ध्यान रहे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्पीड ट्रेनिंग करेंगे तो, स्ट्रेंथ एक्टिविटीज या स्पीड एक्टिविटीज करेंगे तो क्या होगा, तो हाई अमाउंट ऑफ एनाबॉलिक हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में। दूसरी तरफ एंडोरेंस ट्रेनिंग करेंगे तो कैटाबॉलिक हार्मोन्स अधिक सीक्रेट होंगे हमारे शरीर। कुल मिलाकर बात हुई कि अभी ये बहुत महत्वपूर्ण है, यदि हम स्पीड ट्रेनिंग करेंगे तो एनाबॉलिक हार्मोन, स्पीड या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो एनाबॉलिक हार्मोन अधिक सीक्रेट होंगे। एंडोरेंस ट्रेनिंग करेंगे, देर तक व्यायाम करेंगे, एक लंबे अंतराल के व्यायाम करेंगे, उस दशा में हमारे कैटाबॉलिक हार्मोन्स अधिक सीक्रेट होंगे। इंपॉर्टेंट, एनाबॉलिक हार्मोन्स जो हैं, जो पहली श्रेणी थी, जो कि स्ट्रेंथ और स्पीड एक्टिविटीज के कारण सीक्रेट होते हैं, वो क्या कहते हैं, हमारी सेक्स ड्राइव को बढ़ाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस करकर हमारे मांसपेशी के आकार को बढ़ाते हैं, दैट फैसिलिटेट मसल ग्रोथ। लेकिन दूसरी, इसके एग्जांपल्स हैं, इंसुलिन है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है। दूसरी तरफ जो कैटाबॉलिक हार्मोन्स हैं उसके ठीक विपरीत प्रभाव छोड़ते हैं, मसल के साइज को भी कम करते हैं। और एग्जाम्पल्स इनके हैं, कॉर्टिसोल है, ग्लूकागोन है, प्रोगेस्टेरोन है, एड्रेनलिन है। लेकिन हमारे शरीर में अभी तक तो हमने, अभी तक की चर्चा से तो आप कहेंगे कि एनाबॉलिक हार्मोन तो फायदा करते हैं, कैटाबॉलिक हार्मोन तो नुकसान करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। हमारे शरीर को दोनों ही प्रकार के हार्मोन चाहिए, हमारे शरीर को कैटाबॉलिक हार्मोन भी चाहिए, हमारे शरीर को एनाबॉलिक हार्मोन ही चाहिए। क्यों चाहिए? The body requires similar amount of hormones to remain in the state of homeostasis. हमें होम्योस्टेसिस की दशा में रखने के लिए, होम्योस्टेसिस का मतलब संतुलन, असंतुलन पैदा हुआ, that will lead to illness, जो कि इलनेस की तरफ हमें बढ़ाएगा, that will lead to the illness। लेकिन एंडोरेंस एथलीट प्रोड्यूस करते हैं कैटाबॉलिक, चर्चा हो चुकी है, और स्ट्रेंथ एंड स्पीड एक्टिविटीज करती है एनाबॉलिक हार्मोन्स, जो कि सप्रेस करती है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इन मेन और एस्ट्रोजन लेवल्स इन वुमेन। तो लेकिन हमें दोनों ही प्रकार की गतिविधियां शामिल करनी चाहिए। एक बात, अब प्रश्न उठा कि सॉल्यूशन क्या है, अब प्रश्न उठा कि इन सब का समाधान क्या, इन सब का समाधान क्या है? समाधान क्या है? डिपेंड्स ऑन फ्यू इश्यूज, कुछ मुद्दों पर। पहला, मोर इंटेंसिटी लेस वॉल्यूम, स्पेशली ये है कि यदि हम एक वर्तमान की बात करें, एक कोविड-19 पेंडेमिक की बात करें, तो कोशिश करनी चाहिए कि मोर इंटेंसिटी एंड लेस वॉल्यूम, इंटेंसिटी अधिक हो, वॉल्यूम लेस हो। दूसरी बात, ईट ए फैट डाइट, पूरे सभी फैट्स एक नुकसानदायक नहीं होते हैं। ये क्या हार्मोनल प्रीक्यूर्सर्स हैं फैट, जो कि क्या करते हैं कि
नेचुरल सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल हैं और जो सैचुरेटेड फैट है उसका उपयोग किया जाता है टू फ्यूल द बॉडीज हार्मोन प्रोडक्शन प्रोसेस। और इन 3 चीजों का निषेध कर लेना चाहिए, स्पेशली खिलाड़ियों में। सिंपल शुगर को अवॉइड करें, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें एंड अल्कोहल को अवॉइड करें। इन तीनों को हमेशा अवॉइड करें। क्यों? ये जो तीनों ही कंपाउंड हैं, ये तीनों ही कंपाउंड से मेरा अर्थ है सिंपल शुगर है, प्रोसेस्ड फूड है, अल्कोहल है, ये तीनों ही क्या है, ये कम करते हैं शरीर में नेचुरल हार्मोन्स को। जो शरीर में प्राकृतिक हार्मोन्स का रिसाव होता है, उन प्राकृतिक हार्मोन्स का सिक्रेशन ये कम करते हैं और शरीर में एक सिंथेटिक हार्मोन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे शरीर में सिंथेटिक हार्मोन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होगा, शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस आएगा। शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस आएगा तो हम उसके डिजास्टर रिजल्ट्स की कल्पना हम कर सकते हैं। और अगला जो सुझाव दिया गया है कि वी ऑल आर लिविंग इन ए स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, हम एक तनावपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं, हमारी जीवन शैली भी तनावपूर्ण हो चुकी है, तो अवॉइड स्ट्रेस, तनाव को अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए। क्यों? कि स्ट्रेस इज एसोसिएटेड विद द सीक्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन स्पेशली बाय आवर एड्रेनल ग्लैंड, जो कि बहुत नुकसान पहुंचाते। तो अवॉइड हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, जिससे कि अब बात करते हैं ट्रेनिंग एंड फीमेल इश्यूज। फीमेल इश्यूज की कुछ बात करेंगे, फीमेल्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा ट्रेनिंग, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मुद्दों की बात करेंगे। यदि माइल्ड एक्सरसाइज करते हैं, माइल्ड मीन्स विद लो इंटेंसिटी, माइल्ड एक्सरसाइज करेंगे, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो मेंस्ट्रुएशन पर कोई दूर तक कोई प्रभाव नहीं पाया जाता है। ये रिसर्च एविडेंसेस हैं, ये अनुसंधान या शोध कार्यों द्वारा बताया गया है। ठीक है, यदि हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो एक दशा उत्पन्न होती है जिसको कहा जाता है एमेन्योरिया। उसका मतलब नो मेंसेस नहीं भी आएंगे, डिस्टर्बेंस होंगी मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स, यदि अति की हैवी एक्सरसाइजेस करेंगे तो। ठीक, अगली बात, पेनफुल पीरियड्स भी पाए गए हैं यदि हम हैवी एक्सरसाइज करें तो। लेकिन आयरन डेफिशिएंसी माइट बिकम ए प्रॉब्लम इन द फीमेल्स विद हैवी मेंस्ट्रुएशन व्हिच वुड लीड टू डिक्रीज इन द ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी। यहां पर हमें बात हो चुकी है कि यदि हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो मोनोमेंसिस होंगे। उससे क्या होगा, अगर मान लीजिए कि आयरन डेफिशिएंसी अगर हम भी कंपेयर द मेल विद द फीमेल्स, तो क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी अगर फीमेल्स में होगी तो फीमेल्स में क्या होगा, यदि हैवी मेंस्ट्रुएशन होते हैं उस दशा में, तो हमारी जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होगी, जो ऑप्टिमल यूज है ऑक्सीजन का, जो हमारा सिस्टम ले पाए, वो नहीं ले पाता। तो इसलिए ध्यान दें, एक सबसे अच्छा पॉइंट है, सबसे अच्छा बिंदु है रिसर्च बेस्ड फाइंडिंग्स में कि जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो जटिलता होती है प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ में, यह रिसर्च कहता है, यह अनुसंधान कहता है, यदि तुलना करें दोनों की, ट्रेनिंग करने वाले एथलीट्स फीमेल्स की और नॉन एथलीट फीमेल्स की, तो जो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस एथलीट्स में कम पाए गए हैं, और जो चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं बच्चे के जन्म में, या सिजेरियन कहें या कुछ भी कहें दूसरा भी, उसमें जो कॉम्प्लिकेशन चाइल्ड बर्थ में भी महिलाओं में कम पाए गए हैं। तो केवल स्पोर्ट्स की बात ना करें कि जो प्रेगनेंसी रिलेटेड और चाइल्ड बर्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये फीमेल ट्रेंड एथलीट्स में कम पाए गए हैं नॉन एथलीट की तुलना में। तो दोनों तरफ ये हैं, दोनों ही हैं। तो फीमेल शुड अवॉइड वेरी हाई हैवी एक्सरसाइज, दे शुड अवॉइड, अदरवाइज दैट विल डिस्टर्ब द मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एज पर द रिसर्च फाइंडिंग्स, अनुसंधान के अनुरूप एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक यह स्टडी रिवील करती है कि परफॉर्मेंस रिटर्न और इज ग्रेटर देन द प्री प्रेगनेंसी पीरियड। यू विल बी शॉक्ड आफ्टर, आपको आश्चर्य होगा कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन इट इज रिवील्ड बाय रिसर्च स्टडी कि जैसे जो प्री प्रेगनेंसी लेवल था उससे परफॉर्मेंस या तो तुरंत वहीं पहुंच जाती है या उससे अधिक पाई गई है एज पर द रिसर्च स्टडीज।
एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक रिसर्च फाइंडिंग है, एक्साइज एंड ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम कैसे प्रभाव करता है। हम एक खिलाड़ी को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। व्हाट इज द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का इमीडिएट सोर्स क्या है, एनर्जी का ऊर्जा का आकस्मिक स्रोत क्या है, हम सब जानते हैं फॉस्फोजन सिस्टम। फॉस्फोजन सिस्टम से हमारा अर्थ है एटीपी एंड सीपी। एटीपी मींस एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और सीपी मींस क्रिएटिन फॉस्फेट। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी में एडेनोसाइन के साथ 3 फॉस्फेट बॉन्ड जुड़े होते हैं, फॉस्फेट बॉन्ड 1 2 3। जब एनर्जी चाहिए हमें तो एटीपी इज कन्वर्टेड टू एडीपी, डाई मींस 2, एक फॉस्फेट बॉन्ड 3 की जगह 2 हो गए एडीपी, और भी चाहिए तो एएमपी बन गया एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। और क्रिएटिन के साथ क्रिएटिन फॉस्फेट, तो क्रिएटिन के साथ हाई एनर्जी बॉन्ड जुड़ा होता है। फॉस्फोजन सिस्टम जो कार्य करता है इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन कुछ क्षण तक ही हमें ऊर्जा मिलती है। उसके बाद जो भी हमें अपने कार्य को निरंतर आगे बढ़ाना है, उस दशा में हमें एनर्जी प्रदान करता है ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम। अब प्रश्न उठा कि ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम किस प्रकार से कार्य करता है। When the energy is required, जब हमें ऊर्जा चाहिए, और फॉस्फोजन सिस्टम द्वारा प्रदान की ऊर्जा का हम प्रयोग कर चुके हैं, तो एक नेचुरल प्रक्रिया है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्राकृतिक क्या है कि ईच ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू 2 पायरिक एसिड मॉलिक्यूल्स, कि प्रत्येक ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल 2 पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित हो जाता है। यदि हमारे शरीर में हम मान के चलें कि हमारे शरीर में मान लें कि 1000, एक परिकल्पना पूर्ण है कि मान लें कि 1000 ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल हैं, तो अपने आप ही 2000 में परिवर्तित हो जाएंगे। क्यों ये प्रक्रिया क्यों घटित हुई, व्हाई दिस हैपेंस, क्यों घटित होता है, क्योंकि हमें ऊर्जा चाहिए। इसलिए एक ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल 2 पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल में परिवर्तित हो जाता है, और ये एंटर हुए कहां, ये हुए एंटर कोशिका में, सेल में। और सेल में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, हम सब जानते हैं, जिसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। और इस माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन स्टोर्ड है, तो जिस पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल को जिस पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन मिल गई, दैट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और वो ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि एक ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल 2 पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल में परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए शरीर में पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन होती है सीमित। इसलिए प्रत्येक पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसको मिल गई वो ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, जिसको नहीं मिली दैट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, वो परिवर्तित हो जाती है लैक्टिक एसिड में, एंड वी फील फटीग, और हम फटीग महसूस करते हैं, हम थकान महसूस करते हैं, हम फटीग महसूस करते हैं। But by the help of exercise program, by the help of practices, more amount of oxygen can be supplied at tissue level. तो lactic acid का प्रोडक्शन कम होता है। सिंपल शब्द में, we can delay the fatigue for longer duration, हम थकान को बहुत देर तक दूर रख सकते हैं। सामान्य सी बात है, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन कम होगा, थकान को दूर रहेंगे, और कुल मिलाकर और अच्छी भाषा में हम कह सकते हैं वी विल फील रिजुविनेट, हम अपने आप को एनर्जी से, ऊर्जा से परिपूर्ण महसूस करेंगे। सामान्य सी बात है। द रूट कॉज इज इंप्रूवमेंट इन द ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम, उसका रूट कॉज है कि ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम का मजबूत हो जाना। अब एक्सरसाइज एंड इम्यून सिस्टम, एक्सरसाइज और इम्यून सिस्टम की बात करते हैं। एक्सरसाइज सिस्टम, इम्यून सिस्टम की बात करें, एक अर्ली कंसेप्ट की बात करें। एक आर्टिकल था, बड़ा मुझे अच्छा लगा, तो उसके कुछ अंश आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कॉलेमन ने 2020 में ही प्रकाशित हुआ है ऑन May 5। तो 2 बातें हैं। अर्ली कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, कितनी आश्चर्यजनक बात होगी, आप सुनेंगे। तो अर्ली कंसेप्ट था, और जो रिसेंट कंसेप्ट अलग है। तो पहले कुछ अलग मान्यता थी इसके बारे में, आज कुछ मान्यता है। पहले क्या मान्यता थी, जो मान्यता बनी रही 1980 से 1990 के दशक के बीच,
लोगों का मानना था कि एक्सरसाइज करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। क्यों था ऐसा? There was no clinical study, there is no clinical evidence, कोई clinical study का कोई सबूत नहीं है। लोगों को जैसा लगा, जो ऑब्जर्व किया, जो उनको लगा, एक विचारों पर आधारित बात थी, that was on the basis of the observations। और आपको आश्चर्य होगा, ये 20th सेंचुरी तक भी इस तरह के ख्याल लोगों में रहा। लेकिन इसके पीछे कारण क्या था कि केवल क्लिनिकल स्टडी नहीं हुई थी, कोई ऐसा रिसेंट क्लिनिकल स्टडीज नहीं हुई थी, वो केवल ऑब्जर्वेशन पर आधारित बात थी। लेकिन जो रिसेंट कंसेप्ट है, जो आज के दिन वैज्ञानिकता पर आधारित जो कंसेप्ट है, उसके अनुसार कि एक्सरसाइज का नेगेटिव और पॉजिटिव इम्यून सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो निर्भर करेगा एक्सरसाइज की ड्यूरेशन पर और एक्सरसाइज की इंटेंसिटी पर। जो कि नकारात्मक के रूप के में तो हमने बात कर लिया था कि ओपन विंडो थ्योरी के बारे में चर्चा हुई कि किसी भी इंटेंस एक्सरसाइज करेंगे तो अगले 3 से 72 घंटे हमारा शरीर संवेदनशील हो जाता है इन्वेडर्स के प्रति, जिसमें कि इन्वेडर्स आक्रमणकारी जीवाणु बहुत आसानी से हमारे शरीर पर आक्रमण कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी रिसर्च है जिसके फाइंडिंग्स है कि हमारे शरीर में किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, दोज डिस्ट्रॉय इन्वेडर्स, जो आक्रमणकारी जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, तो स्टडीज कहती हैं कि इनमें 10 गुना वृद्धि होती है। दीज इंप्रूव्स 10 फोल्ड्स। तो एक्सरसाइज करने वाले में 10 गुना अधिक नेचुरल किलर सेल्स पाए गए हैं और 10 फोल्ड इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज। बहुत ही सार्थक वृद्धि है, बहुत ही एक सार्थक वृद्धि कहलाती है। तो इसलिए भ्रम में नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि दैट डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी। तो कुल मिलाकर यदि हमारा इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करना हमारा उद्देश्य है, उस दशा में तो हमें मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज आज के दिन करनी चाहिए। तो ये रेफरेंसेस थे। तो लेकिन अब इम्यून सिस्टम की बात कर लें कि इम्यून सिस्टम का मैं वैसे ही बताता हूँ आपको विदाउट एनी स्लाइड कि अगर बात करें हम इम्यून सिस्टम की कि हाउ दिस इफेक्ट अवर इम्यून सिस्टम को कैसे प्रभावित करता है, उसके बारे में भी थोड़ी बातें हम जान लें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक्सरसाइज एंड इम्यून सिस्टम हम सब जानते हैं। अब ट्रेनिंग की पूरी तरह से प्रशिक्षण की बात तो हम कर चुके हैं, वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द ट्रेनिंग पार्ट। लेकिन इम्यून सिस्टम की बात करें तो हम सब जानते हैं कि वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज। हमारी 2 प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमताएं हैं। फर्स्ट वन इज इनेट इम्यूनिटी, सेकंड वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या है? दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? जो हम जन्म से लेकर मृत्यु तक विकसित करते हैं। और वो विकसित करने के 2 ही तरीके, ओनली देयर आर 2 वेज बाय दैट वी कैन डेवलप। पहला, इफ वी आर एक्सपोज्ड विद द डिजीज, यदि हमें कोई बीमारी जकड़ती है, उस दशा में विकसित होगी, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाएंगी। और दूसरा है बाय द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के माध्यम से, टीके के माध्यम से। एंड द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन इज गोइंग ऑन, और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी चल रही है। तो इसका अर्थ हुआ कि एक्सरसाइज से हमारे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम पर तो कोई प्रभाव पड़ना नहीं है, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम तो केवल 2 ही कारकों से प्रभावित होता है। पहला, यदि बीमारी जकड़ती है तो हम बीमारी का तो वेट करेंगे नहीं कि बीमारी हमें जकड़े, एंटीबॉडीज विकसित हुए या वैक्सीनेशन। तो एक्सरसाइज का प्रभाव पड़ेगा इनेट इम्यून सिस्टम पर। दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ आवर डिफेंस, यानी वो रक्षा की पंक्ति के सैनिक है जो सबसे पहले हमारी रक्षा करते हैं इन्वेडर्स से, आक्रमणकारी जीवाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। तो आमतौर पर यह निर्भर करती है ल्यूकोसाइट्स पर, मींस व्हाइट ब्लड सेल्स पर, और साथ साथ 3 और ब्लड कंटेंट्स हैं, वो कहलाते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। वो ग्रेनुलोसाइट्स जो कि न्यूट्रोफिल ग्रेनुलोसाइट्स हैं, बेसोफिल ग्रेनुलोसाइट्स हैं और इओसिनोफिल ग्रेनुलोसाइट्स हैं। ये 3 प्रकार, ये चारों ही रिसर्च स्टडीज कहती हैं, रिसर्च स्टडीज रिवील्ड दैट हमारे ल्यूकोसाइट्स में WBC में भी वृद्धि होती है, हमारे न्यूट्रोफिल ग्रेनुलोसाइट्स में भी वृद्धि होती है, हमारे बेसोफिल ग्रेनुलोसाइट्स में भी वृद्धि होती है, हमारे इओसिनोफिल ग्रेनुलोसाइट्स में भी वृद्धि होती है। यदि कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम, और आज के दिन एक एक्सरसाइज प्रोग्राम दुनिया भर के एक शेड्यूल, एक प्रोग्राम्स का स्ट्रक्चर भी साइंटिफिक एविडेंसेस द्वारा दर्शाया गया कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। छोटा सा एग्जांपल लास्ट में योग के एक शेड्यूल बताया गया है
रिसेंटली आई हैव गॉन थ्रू ए स्टडी, उसमें बताया गया यदि हमारा उद्देश्य इम्यून सिस्टम है तो अगर केवल, अब ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यदि योग पर बात करें तो केवल अकेले योग में तो दुनिया भर के अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, दुनिया भर के तामझाम है, लेकिन तो हमें अकेले आसन से भी ऑप्टिमल बेनिफिट्स नहीं होंगे, अकेले प्राणायाम से भी ऑप्टिमल बेनिफिट्स नहीं होंगे, अकेले मेडिटेशन। यदि हमें ऑप्टिमल बेनिफिट चाहिए, यदि हमें उच्चतम लाभ चाहिए, रिसर्च स्टडीज बताती हैं कि we should include 3 different types of practices in our training session. Few asanas should be included, कुछ आसन भी रखें, 1 or 2 pranayama should be included, and a meditative practice, essentially a meditative practice should be included. तो कुल मिलाकर ये कहानी थी। तो इस कहानी के बारे में मेरी तरफ से विस्तार से चर्चा हो चुकी है। थोड़ी स्पीड मेरी अधिक रही, अगर कोशिश की गई है कि एक अपनी बात में आप तक ठीक प्रकार से पहुंचा पाऊं। तो नाउ द क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट्स। हमारे पास अभी है 15-20 मिनट, आप हम चर्चा कर सकते हैं। सामग्री तो बहुत है, लेकिन क्योंकि ये आपका शायद सेकंड लास्ट या अंतिम सेशन होगा, या अंतिम सेशन होगा, एक और होगा, तो हर व्यक्ति विशेष की क्षमता होती है सुनने की। रिसर्च स्टडीज कहती है कि कोई भी व्यक्ति विशेष जागरूकता के साथ निरंतर विथ अटेंशन कंटिन्यूअस 13, 14, 15 मिनट ही सुन सकता है। उसके बाद जो ग्रहणशीलता है, ग्रेस्पिंग एबिलिटी है, 100 से 99, 99 से 98 वगैरह ऐसा समय आता है जब ग्रहणशीलता 0% होती है, और वो कहलाता है रिजेक्टिंग टाइम। तो मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ और आपकी तरह रिफ्रेशर कोर्स बहुत कर चुका हूँ कोर्सेज, तो आप में से कुछ रिजेक्टिंग टाइम में भी प्रवेश कर चुके होंगे, और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कन्वे एनी मैसेज इन द रिजेक्टिंग टाइम। रिजेक्टिंग टाइम में अपनी बात को पहुंचा पाना है तो दिए और तूफान की कहानी। I tried my level best. Now over to the organizers, over to the group leader for the question and answer session, please. Thank you. सर एक क्वेश्चन था। जी जी सर अभी काफी टाइम से हम देख रहे हैं ये कोविड पैंडेमिक आया है, तो उस टाइम में अभी काफी प्लेयर्स है जो आइसोलेशन में रहने के बाद अभी 2-3 साल से ऐसे देखा गया कि डिप्रेशन के कारण अभी संन्यास ले रहे हैं यंग प्लेयर्स। तो उसके पीछे ट्रेनिंग का भी एक पर्पस हो सकता है कि ओवर ट्रेनिंग हो सकती है, या कुछ दूसरा कारण हो सकता है, या ये पैंडेमिक के कारण हो सकता है। सर ऐसा तो बहुत मुश्किल है कुछ कहना है, लेकिन एज पर माय ओपिनियन कोई ओवरलोड तो हो ही नहीं सकता, ओवरलोड नहीं हो सकता। दैट मे बी इश्यू ऑफ द टेंशन, दैट मे बी इश्यू ऑफ द स्ट्रेस आल्सो, द एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, एक्सपोजर कुछ भी, कोई भी व्यक्ति विशेष एक सीमा में बांध देंगे, जिसकी की हैबिट थी कि रोज ग्राउंड में जाता था, खेलता था, ओपननेस थी, ही और शी वाज फ्री टू डू एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, और एक बंधन में कोई भी एक कितने स्वस्थ व्यक्ति को बंधन में रखा जाए तो कॉम्प्लिकेशंस में अराइज, कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, जटिलताएं बढ़ेंगी। लेकिन एग्जैक्ट कुछ कह पाना मेरे हिसाब से तो एग्जैक्ट कहना है, और ओवरलोड तो दूर दूर तक नहीं हो सकता। ओवरलोड तो सामान्य परिस्थिति में भी हो सकता, कभी भी हो सकता था। तो ओवरलोड मे नॉट बी कॉज, ओवरलोड कॉज नहीं हो सकता, दूसरे कारण हो सकते हैं। यस सर, थैंक यू। हेलो। हाँ जी सर। हेलो। जी सर। जी हाँ सर, मैं महाराष्ट्र से डॉक्टर विजय मस्की बात कर रहा हूँ। हेलो। जी सर, सुन रहा हूँ। हाँ सर, आज आपका जो एक्सरसाइज साइंस के जो टॉपिक के ऊपर आपने जो बताया है कि ट्रेनिंग लोड है, ट्रेनिंग इफेक्ट है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग है, उसका बहुत ही आपने सुंदर सा उसका आपने बताया है। मेरे को एक क्वेश्चन ऐसा था कि जो आपने जो MHR जो बताया है मैक्सिमम हार्ट रेट के बारे में, तो हर बंदे के ऊपर जो मैक्सिमम हार्ट रेट रहता है वो कम ज़्यादा होता है, तो उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि मैक्सिमम हार्ट रेट तो एक ऐसा है कि जो ये माना गया है कि आवर हार्ट कैन पंप एट दिस मैक्सिमम लेवल, इतनी बात हुई। उसके बाद एक रेंज भी बताया, हर व्यक्ति विशेष के लिए समान नहीं हो सकता, एक रेंज भी बताई गई है। उसमें बताया गया था यदि कि एंड्योरेंस इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो हमारी जो टारगेट जोन है वो 60 से 80% के बीच में जो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन होनी चाहिए। लेकिन रेंज बहुत है, 60 to 80, 20% का। यदि कोई अनफिट पर्सन है तो वो 60 के करीब रखे, 60% मैक्सिमम हार्ट रेट का। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग और फिट पर्सन है
वो 80% के आसपास रहे। तो हमें डिसाइड करना है आफ्टर आइडेंटिफाइंग द फिटनेस लेवल ऑफ इंडिविजुअल, फिटनेस लेवल ऑफ द इंडिविजुअल, कि व्यक्ति की फिटनेस लेवल के आधार पर हमें निर्धारित करना है कि हमें 60 के आसपास रखना है, 80 के आसपास रखना है, मीडियम फिटनेस है। विजय सर, इज इट ओके? यस सर, यस। और सर और एक था, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग में आपने जो बताया है ओवरलोड में FITT, एफ फ्रीक्वेंसी, आई इंटेंसिटी, टी टाइम और टी टाइप। तो जो है आपने जो एक नया अच्छा कुछ बताया, इसलिए आपको हम सबके सबसे वजह से आपको धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही अच्छा आज का ट्रेनिंग सेशन हुआ है। थैंक यू सर। हेलो हाँ राजीव सर, दिस इज हाँ, हिमांशु जी बताइए, हिमांशु जी बताइए। sir, the principles of load and training and the other training modules or things which you discussed already with us, I think these are the universal things. तो मेरा Yes, sir. क्वेश्चन ये था कि एडवांस कंट्री के जो कोचेस या सपोर्ट स्टाफ या जो स्पोर्ट्स साइंसेस का इन्फ्लुएंस ट्रेनिंग पे होता है, क्या हम इंडिया में उस चीज से लैग कर रहे हैं या हमारे कोचेस उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? बड़ा एक संवेदनशील प्रश्न है आपका, बहुत ही संवेदनशील है कि और आपकी बात से स्पष्ट है कि आवर परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क। हमारा प्रदर्शन एक डिजायर्ड लेवल पर नहीं है। रिगार्डिंग दिस सम ब्लेम्स पॉलिटिशियंस, सम ब्लेम्स लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट्स, सम ब्लेम्स पॉलिटिशियंस, दुनिया भर के आरोप प्रत्यारोप रखते रहते हैं। लेकिन हिमांशु जी, आप भी इस बात से सहमत होंगे, द मेन कॉज इज द लैक ऑफ प्रॉपर रिसर्च वर्क इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस। The training program that we are using has been used by the countries 10 years before. लेकिन वो अपनी लेटेस्ट रिसर्चेस को क्यों आपको देंगे? वो जर्नल में भी, जो ओपन एक्सेस जर्नल्स हैं, उसमें भी अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को वो क्यों देंगे? तो कुल मिलाकर तो ये है, अगर लेटेस्ट, ये आपकी बात सही है कि ये सब बातें तो सब जानते हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल, लेकिन हमें जो लेटेस्ट टूल्स और टेक्निक्स और ट्रेंड से अवगत होना है, तो रिसेंट एंड लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च शुड बी डन। एक हमें एम्फेसिस देना चाहिए रिसर्च फील्ड पर। यस, यू आर राइट। यस सर, वैलिडेट सर, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ जी बताइए सर, मेरा सवाल ये था कि मैं जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, वेट ट्रेनिंग है, तो ये कितने साल के उम्र के बच्चों की, जैसे हमारी इधर मिथ है एक, वो मैं वॉलीबॉल प्लेयर हूँ, तो वेट ट्रेनिंग करने से हाइट रुक जाती है, ऐसा कुछ ये है, मिथ है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चंस मैं स्टूडेंट लाइफ से, सौरभ जी, स्टूडेंट लाइफ से इस तरह के क्वेश्चंस अराइज हो चुके हैं। मैं पढ़ता भी था जब मास्टर की डिग्री कर रहा था, एमफिल कर रहा था। इट शुड बी अवॉइडेड। यदि सिस्टमैटिक हो, तो जहां तक है लिटरेचर मैंने पढ़ा है, दैट हैव नो इफेक्ट ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सिस्टमैटिक हो तो, अगर कुछ इनसिस्टमैटिक हो जाए, ओवरलोड हो कुछ अलग तरह का, सिस्टमैटिक हो तो बेस्ट ऑफ बच्चों सौरभ जी। हेलो हेलो सर जी। हाँ सौरभ। हेलो। हाँ, तो कितने साल के ऊपर के उम्र के बच्चों को वेट ट्रेनिंग करा सकते हैं? वो कुछ एज लिमिट है कि उनको? अब एग्जैक्ट तो अभी अचानक स्पॉन्टेनियस तो बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन केवल कोई लिटरेचर मैंने अभी तक कोशिश नहीं की, पढ़ा नहीं। आई विल सटीक, एक बिल्कुल सटीक उत्तर चाहिए, तो आफ्टर कंसल्टिंग द लिटरेचर आई कैन टेल यू। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके। नमस्कार सर जी। नमस्कार नवनीत जी। नमस्कार यादव जी हाँ बताइए। जी, हाँ जी सर। हाँ सर, थोड़ा मुझे एक कंफ्यूजन था कि 220 माइनस एज, तो 220 इट्स अ फॉर्मूला, बट ये 220 क्यों लिया, वो थोड़ा प्रश्न था सर। हाँ, 220 क्यों लिया? 220 लिया, जितनी भी मेडिकल साइंसेज और एक्सरसाइज साइंस, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की स्टडीज हुई, उनसे पाया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च स्टडीज दिस हैज बीन डेवलप्ड, दिस कांसेप्ट हैज बीन डेवलप्ड। ये कांसेप्ट डेवलप हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च स्टडीज। तो कि उस किस प्रकार से डेवलप हुआ, उस कांसेप्ट के बारे में डिटेल तो नहीं है, लेकिन यस, दिस कांसेप्ट इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक स्टडीज। थैंक यू सर, थैंक यू सर।
और कोई क्वेश्चन आपके? Sir, good evening, sir. जी गुड इवनिंग। This is Dr. Keshwamurthy from Mangalore, Karnataka, Mangalore University. केशवाना जी बताइए प्लीज प्लीज। I think it's a very nice presentation you made, sir. Very good, highlighted about all the training aspects. My question is, how are you going to identify the overload? After identify the overload, what is the remedies you're going to be suggest for the athletes? Remedies means you we have to restore the previous level. Separately, we have to start in a new form. New form, I means, I hope you all have heard about the periodization. So you should start a new program from the initial level. Without replanning, without restructuring, it will not be possible to retain the previous state, since due to the overload, due to the imbalance between the load and recovery, I think the individual observed the or lacking the performance. So different tools and techniques may be used. For example, some physiotherapy treatments simultaneously with the training, massage, etc., and by maintaining the proper balance in the future in between the load and recovery. All these small issues should be followed. Without that, we will not be able to retain the previous state. Sir, yes, sir, I will accept your arguments, sir. Very nice, sir. Even though, sir, when we are going to be consider all those things in overload, load, and recovery, everything in Indian level camp only, not in our ordinary in university camp also, or maybe in the college level, you continue to find only, sir. In that level, in Indian level camp like that, you are identified the load and you have to go for the remedies. The performance effect won't be occur, no, sir. Pardon? Your last sentence? Your last sentence? It will occur the performance, level of performance, no. When we are going to make the Indian camp means, you will be go for another any international competitions. Yes, that time you are giving the training for the student in any, or maybe athlete in any other in our country. That time you identified if the person is facing the load. Yes, we are go for the it should be identified at the initial level only. It should be identified. Otherwise, complication will take place, and after complications, it will be very difficult to restore. We all know that it will be very difficult to restore the. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. नमस्ते सर। नमस्कार जी। हाँ सर, एक क्वेश्चन था। जिसे हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाते हैं तो ज़्यादातर मसल्स हाइपोट्रॉफी होते हैं, जिसमें मसल्स फाइबर के साइज इंक्रीज होते हैं। सर, कोई रिसर्च ऐसा है कि जिसमें नंबर ऑफ फाइबर्स इंक्रीज होते हैं उसको? नहीं, अब जहाँ रिसर्च पढ़ी है, मैंने रिसर्च पढ़ी है, तो रिसर्च स्टडीज तो कहती हैं कि नंबर ऑफ मसल फाइबर्स कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड। मसल फाइबर नहीं, वो तो जन्मजात है, हेरिडिटिकल ट्रेट्स है। हाँ, वही कह रहा हूँ कि कहीं भी ऐसा कुछ है रिसेंटली जिसमें नंबर ऑफ फाइबर इंक्रीज होते हैं, जैसे हम लोग अभी तक है कि ओनली नंबर ऑफ फाइबर्स विल रिमेन द सेम, ओनली थिकनेस कैन बी इम्प्रूव्ड। यदि कि व्हाइट मसल फाइबर्स की नंबर अधिक है तो उसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं। अगर व्हाइट मसल फाइबर्स की थिकनेस अधिक है, नहीं नंबर्स अधिक है जन्मजात, उस दशा में इन दैट केस चाहे कितनी भी एंडोरेंस ट्रेनिंग दे दो, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेन हिम और हर एज एंडोरेंस एथलीट। तो डिपेंड करता है, तो वो तो एक है बायोप्सी के द्वारा, ये तो बहुत अच्छी बात है, बायोप्सी के द्वारा पता लगाना चाहिए इनिशियल स्टेजेस पर वेदर इंडिविजुअल इज हैविंग रेड मसल फाइबर्स मोर और व्हाइट मसल फाइबर्स मोर, क्योंकि नंबर तो बढ़ नहीं सकता, दैट डिपेंड्स ऑन द हेरिडिटी। तो ऐसा कोई एविडेंस मैंने आज तक नहीं देखा है कि नंबर इंक्रीजेस, नंबर नहीं बढ़ सकते, ओनली डायमीटर्स ऑफ मसल्स फाइबर्स। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर, एक पॉइंट था आपने जो बताया था ओपन विंडो थ्योरी के बारे में, तो थोड़ा विस्तृत से वापस बता सकते हैं? सर, ओपन विंडो थ्योरी क्या कहती है? ओपन विंडो थ्योरी की चर्चा की आज आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हम विश्वव्यापी, सर हिंदी में समझेंगे इंग्लिश में? यस सर, कोई बात नहीं। अच्छा, तो क्योंकि हम आजकल कोविड-19 पेंडेमिक का सामना कर रहे हैं सर,
तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को बढ़ाने के साथ साथ अपना बचाव भी करना है। इसलिए देयर इज ए नीड टू नो अबाउट द ओपन विंडो थ्योरी। ओपन विंडो थ्योरी क्या कहती है? यदि बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ यदि हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा शरीर में एक ओपन विंडो नाम का कुछ घटित होता है, कुछ मान लीजिए कुछ घटित होता है। उसका अर्थ है, ओपन विंडो का अर्थ है कि व्यायाम के तुरंत बंद करने के बाद, व्यायाम करने की समाप्ति के 3 से 72 घंटे तक हमारा शरीर इन्वेडर्स, जो आक्रमणकारी जीवाणु है, उनके प्रति संवेदनशील हो जाता है और उस दशा में वो आक्रमणकारी जीवाणु बड़े आसानी से हमारे शरीर पर आक्रमण कर सकते हैं। या तो आप प्रिकॉशंस लें, 3 से 72 घंटे तक बहुत अच्छी एक सुरक्षा रखें, और सुरक्षा रखना है तो कहीं तो काम तो करना पड़ेगा, आप कहीं ना कहीं तो जाएंगे। तो उस दशा में तो ये है कि मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ एक्सरसाइज करें, स्पेशली इन दिस कोविड-19 पेंडेमिक, since our body becomes very sensitive in that particular period 3 to 72 hours after the completion of any training session with intense exercise। तो ये कंसेप्ट था विजय जी अबाउट द ओपन विंडो थ्योरी। सर थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? सर मुझे एक क्वेश्चन आपसे जस्ट शेयर करना था। हेलो कि सर अगर जैसे मैं नून कॉलेज में पढ़ाता हूँ बच्चों को शारीरिक शिक्षण, तो हमारे यहाँ क्या है कि बच्चों का प्रॉब्लम है कि अगर ट्रेनिंग में आते हैं तो पूरे दिन में शायद रात का खाना ही खा सकते हैं, या फिर सुबह जो खा के आए हो फिर पूरे दिन में, यानी उनका फूड का इश्यू रहता है अगर स्पोर्ट्स वो करते। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ अगर एक दिन ऑफ करके एक दिन बच्चों को अगर ट्रेनिंग कराया जाए तो मुझे लग रहा है कि हम ज्यादा, वी हैव टू बी रियलिस्टिक, हम ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकाल पाएंगे उन बच्चों के साथ। तो उस पे क्या कमेंट है सर आपकी? नहीं, यानी एक दिन कंप्लीट रेस्ट? हाँ, एक दिन आज का ट्रेनिंग किया आज और कल कंप्लीट रेस्ट, नो ट्रेनिंग। जहां तक अगर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के, इफ वी टॉक ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स, दैट विल बी टू मच रिकवरी, एंड too much recovery is also harmful, since there will not be any, you will not face any the period of super compensation. We have to take the advantage of the super compensation। तो हमें कि लोड और रिकवरी के बीच में तालमेल बनानी है, तो आप एक दिन का रेस्ट देंगे, in that case that will be considered as too much recovery। दिलीप जी? I have observed sir, because see when they don't take proper diet, ultimately their performance hampers। डाइट तो उसका तो we should concentrate on the diet also। आप कितना भी अल्टरनेट करें, कुछ भी करें, डाइट ही प्रॉपर नहीं है। एक कंसेप्ट और है बहुत अच्छा, एक डाइट के बारे में भी, ऐसा नहीं है, डाइट के बारे में भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, वो मैं आप सबके सामने शेयर करता हूँ। डाइट के बारे में आपने बताया कि वो जो आप कह रहे हैं कि वो खाना ले ही नहीं पाते हैं, उसमें वो तो बहुत खतरनाक है। नहीं सर, ले ही नहीं पाते मतलब में क्या है कि नून स्कूल और वो भी साइंस कॉलेज है हमारा, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे पूरा दिन इतना बिजी रहते हैं कि उनका खाने का शेड्यूल, यानी अगर ट्रेनिंग आप डे टू डे एकदम रेगुलर वाली ट्रेनिंग चलेगी तो हमको वो पता नहीं रहता है, क्योंकि जब ओवरलोड होता है या फिर बीमार से होते हैं तब भी पता चल जाता है कि भाई हाँ ये थोड़ा ज्यादा हो गया। तो मैं ऐसा मुझे लास्ट 1 ईयर में ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि कम ट्रेनिंग में ज्यादा परफॉर्मेंस आ रहे हैं रेदर देन उनको ज्यादा वो करने में। तो ये आपको एक वो एक एरिया है आपका, यू कैन डू द रिसर्च ऑन दैट, रिसर्च की जा सकती है, आप रिसर्च कर सकते हैं उसको, ऐसा नहीं। या सर, इसके बारे में सर मैंने साई के कोच से भी बात की थी ये चीज में, और उन्होंने भी मुझे इस चीज में प्रोत्साहित किया कि ये आपके पास जो बच्चे भी आ रहे हैं और जो जैसे परिस्थिति है उसके अंदर आप ट्रेनिंग बहुत ज्यादा ना करवाए और उनका वो देख के करवाएंगे तो अल्टीमेटली आप परफॉर्मेंस में आगे जाएंगे, ऐसा उनका भी कहना है। एक बहुत अच्छी चीज मुझे भी, मैंने एक भी लेक्चर दिया था आपसे संबंधित, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं आई एम गोइंग टू शेयर ए स्लाइड सी, जो कि साइंटिफिक बेस्ड एक रिसर्च पेपर पर आधारित है, और ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी नहीं थी वो रिसर्च, दैट वाज नॉट ए फॉर्मेलिटी। इज इट विजिबल? यस सर। यस सर। हाँ, एक ध्यान दीजिए, न्यूट्रिशन प्रोस्पेक्टिव्स की हम बात करें, न्यूट्रिशन प्रोस्पेक्टिव्स की,
तो ये सब छोड़ के ध्यान दीजिए। टाइमिंग्स ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, तो आप कहते हैं कि वो बीच में खा नहीं पाते हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस को मसल में बढ़ाना है, तो जो क्या करना है, एक साफ है, स्पष्ट वार्निंग है, डोंट एक्सरसाइज इन ए फास्टेड स्टेट, स्पष्ट है, चाहे आप 1 दिन का गैप करें, 2 दिन का गैप करें। दूसरी चीज, हमारा एक मिसकंसेप्शन है, एक रिसेंट रिसर्च स्टडीज कहती है कि ईट इमीडिएटली आफ्टर द एक्सरसाइज, और जो हम नहीं करते, हम तो वेट करते हैं, क्योंकि उसको कहा जाता है विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो लाभ ले लेना चाहिए, क्योंकि उस खाने का, उस इनटेक का मैक्सिमम एडवांटेज तभी होगा जब इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज वी टेक। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो किस प्रकार की, ये भी बताया गया है, ये कितना अच्छा ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग्स, 6 to 8 grams प्रोटीन प्लस 1 to 1.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर केजी ऑफ बॉडी वेट एक्सरसाइज के तुरंत 30 मिनट्स के अंदर ले लेना चाहिए। और उसके बाद एक एडवाइस दी गई है, उसके बाद प्रोटीन बिल्कुल मत लीजिए, उसके बाद 6 से 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर केजी बॉडी वेट अगले 24 घंटे में लीजिए। तो ये एक साइंटिफिक स्टडी से एक लंबा आर्टिकल है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेशक आप कुछ भी करें, बिना एक प्रॉपर डाइट के, यदि दिलीप जी। यस सर, आई एम लिसनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द आंसर। Thank you, sir. वेलकम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर धन्यवाद सर। आज हमारे इस सेशन में प्रोफेसर राजीव चौधरी सर ने जो आज का टॉपिक था, रिसेंट ट्रेंड्स इन एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग, और उसमें जो आउटलाइन थे 10 आउटलाइन, तो उसके बारे में हमें काफ़ी अच्छी तरह से जानकारी दी। और मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस राजीव सर के साथ है कि सर जब आनंद थे तो मेरा जब पीएचडी चल रहा था तो सर काफ़ी मुझे हेल्प की थी, तो सर उसके लिए भी थैंक्स। और सर का नेचर बहुत ही अच्छा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो सर मैं और HRDC डिपार्टमेंट गुजरात यूनिवर्सिटी एंड सभी पार्टिसिपेशंस की ओर से हार्दिक आभार मानता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू राजीव सर। थैंक यू जी, आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। you sir. Our second resource person, Dr. Shambhu Prasad sir, has already joined us. So we will start just in 5 minutes.